afternoon to our Vice Chairperson Dr. S.S. Chaudhary sir, and welcome all India Rank 15 Mr. Kunal Rastogi. Please give them a big round of applause. Thank you so much for coming. Please be comfortable. Good afternoon, everyone. Hope you all are doing good. Kunal, I'm really feeling honored to have you here with us and welcome you. It's a great pleasure to have you here with us. Firstly, we all would like to congratulate you on the tremendous success you have got by achieving All India Rank 15 in Civil Services Examination 2023. Big round of applause for Kunal. Heartiest congratulations. You have made us really proud. Now, I would like to request our Vice Chairperson, Dr. S.S. Chaudhary sir, to present a shield to our topper, Kunal Rastogi, to honor him. Sir, please. Congratulations, Kunal. And special thanks to our Vice Chairperson. Thank you so much. Now, without delaying further, I will request Kunal to come and guide our students about answer writing skills and share strategies about how to crack IAS. हेलो यार, मेरा नाम कुणाल रस्तोगी है और जैसे सर ने कहा मेरी ऑल इंडिया रैंक 15 आई है. सो विच लैंग्वेज आर यू कंफर्टेबल? इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश. सो चलो फिर मिक्स्ड ही रख लेते हैं, बायलिंगुअल. So before starting ki what is required for cracking this examination, I'll give you a brief introduction about me. So I was born in Lucknow, but I have spent most of my life in Agartala, Tripura, because my father also belongs to the services. He's an Indian Police Service officer. I graduated in 2021 from BITS Pilani in civil engineering, and that was the first year where I gave my first attempt. So 2021 I reached up to the interview stage, but I missed the final cutoff by 23 marks. उसके बाद मुझे अभी भी याद है, it was I think 1st of June when the result came out, and the next prelims was on 4th of June 2022. And मेरा mental state काफ़ी बिगड़ गया था उसके बाद because I couldn't clear. So I also failed the second prelims, and particularly because of CSAT. So finally जब mark sheet आई तो I got to know that I missed the CSAT cutoff by 1 mark. So I scored 65 that year. और फिर उसके बाद then there was a confusion within my mind, if should I be pursuing this particular profession at all or not. फिर father mother ने support किया, and finally I mustered up the courage to give the third attempt. और 2023 में fortunately I got this particular rank. Now coming to what is required to crash this examination. अब क्योंकि मैंने जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो आई वॉज इन कॉलेज, सो आई डेंट हैव द लग्जरी टू गो आफ्टर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और मेरे पास टाइम ही नहीं था ढूंढने का. सो व्हाट आई डिड, मुझे लगता है काफ़ी काम आता है कि फ्रॉम 2018 many of the toppers have shared their strategy on YouTube. So what I did was I looked up at all the books that they had referred to, और जितने भी टॉपर्स थे मैंने उनकी लिस्ट बना ली है कि उन्होंने क्या क्या बुक्स रेफर किए हैं. एंड देन मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, और जो भी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हैं या ओवरलैपिंग बुक्स हैं, दैट बिकेम माई फाउंडेशनल रिसोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एंड आई थिंक उसके बाद मैंने कुछ रिसोर्सेज में आया. वन थिंग आई मेड श्योर फ्रॉम द फर्स्ट डे इज दैट आई नेवर रेड प्रीलिम्स सेपरेटली. यू ओनली हैव टू रीड मेंस, और अगर आपका मेंस का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाता है देन योर प्रीलिम सिलेबस विल ऑलवेज बी completed, because prelims का syllabus is always a subset. So today in our discussion we will be discussing about what are the books required for the mains examination. जब हम लोग एक बार उसको discuss कर लेंगे, then how to apply the knowledge you have gained from the mains syllabus, and how do we need to apply it in prelims, फिर हम उसको discuss करेंगे थोड़ा. And finally interview stage भी काफ़ी important parameter है, and this time around I scored 193. लास्ट टाइम मेरे 160 नंबर थे, तो 33 नंबर्स का जंप आया मेरे इस अटेम्प्ट में. तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत इस बारे में बता पाऊंगा. तो लास्टली विल डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू स्टेज. अब मेंस का अगर सिलेबस की बात करें तो जो मेजर चीज़ आती हैं वो है GS 1, 2, 3 and 4, देन ऑप्शनल, एंड देन देर इज एन ऐसे पेपर. ऐसे पेपर में देर इज नो डिफाइंड सिलेबस, तो हम उसको लास्ट में डील करेंगे, क्योंकि ऐसे का जो भी कंटेंट और नॉलेज है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर GS 1, 2, 3, 4 नॉलेज.
तो जनरल स्टडीज पेपर 1 की अगर बात करें तो ये 4 पार्ट्स में बटा हुआ है. फर्स्ट इज योर ज्योग्राफी, देन इज योर हिस्ट्री, देन देयर इज योर आर्ट एंड कल्चर, एंड देन देयर इज सोसाइटी और सोशल इश्यूज. तो इसको हम सेपरेटली डील करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील गो विथ ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में माय फंडामेंटल रिसोर्सेज वर दी एनसीईआरटी. अब एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th वो आपका प्राइमरी सोर्स रहेगा ज्योग्राफी के लिए, बिकॉज दैट प्रोवाइड्स द क्रक्स. 11th and 12th एनसीईआरटी. But this is not sufficient because the amount of content in this will only help you pass your prelims examination but not the mains examination. तो उसके लिए मैंने 2-3 वैल्यू एडिशंस किए थे. एक तो जीसी लियोंग की बुक है. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली द लैंडफॉर्म चैप्टर. अब यूपीएससी का लास्ट 2 साल से अगर आप ट्रेंड देखेंगे, बी 2022 और 2023, they've specifically asked about certain landforms. Like 2022 में they asked about states and all. 2023 में they asked about fjords. तो मोस्ट चांसेस है कि इस ईयर के प्रीलिम्स में या मेंस में फिर से वो लैंडफॉर्म से कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे. सो मेक श्योर दैट यू रीड द जीसी लियोंग पार्ट. इसके अलावा एक ऑक्सफोर्ड एटलस आती है. अब ऑक्सफोर्ड की 2 एटलसेस होती हैं. एक होती है स्कूल स्टूडेंट एटलस और एक होती है आपकी स्कूल वाली. तो आप स्टूडेंट एटलस को जरूर फॉलो करें बिकॉज उसमें वो सारे रिवर्स वगैरह बने होते हैं. नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्रीज. मैं डॉक्यूमेंट्रीज पे काफ़ी रिलाई किया मैंने, पर्टिकुलरली इन ज्योग्राफी. अब जैसे अगर आपने वैगनर की थ्योरी पढ़ी होगी, वो बहुत बोरिंग है, मुझे तो काफ़ी बोरिंग लगी थी, लेकिन उसका नेशनल ज्योग्राफी बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है जहाँ पे उसने वैगनर की थ्योरी, जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, उसको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है. तो ऐसे करके जो विजुअल आप एलिमेंट्स ला सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, just for entertainment purposes as well as gaining the necessary knowledge which is outside the books, because सब लोग वही same content बार बार repeat कर रहे हैं and UPSC is not rewarding those which are just reproducing the content available in the market. You have to provide some unique insights for the number to be improved. तो ये मेरे ख्याल से 4-5 सोर्सेज हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे. इसके अलावा मैपिंग के एक आप अलग से कर लीजिएगा. अब मैपिंग में नेट पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर ऐप यूज़ किया था, सेटेरा ऐप करके. तो वो सेटेरा ऐप बेसिकली क्या है, वो वर्ल्ड मैप्स को उसने कंट्रीज एंड रीजन वाइज डिवाइड कर रखा है एंड यू कैन प्ले इट एज अ गेम कि वो आपको एक कंट्री दे देगा एंड हिल से आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर कंट्री ऑन द मैप. तो इससे आपकी मैपिंग की जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी. तो ये 4-5 सोर्सेज हैं ज्योग्राफी के जो मुझे लगता है काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है अगर आप इतना करें. इसके अलावा इंडिया का जो मैपिंग वो मेंस के पार्ट में आता है. तो व्हाट यू कैन डू इज, इंडिया ईयरबुक आती है, उसमें इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स हैं, दैट कुड बी रेड और वो आपको सफिशिएंटली करेगा. लेकिन यह बाद में पड़ेगा, दीज आर जस्ट वैल्यू एडिशंस. फर्स्ट यू स्टिक टू दीज बेसिक रिसोर्सेज, उसके बाद आप इंडिया ईयरबुक से अपना और ज़्यादा इन्हांसमेंट कर सकते हैं. बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया, अब आप देखेंगे इस साल एक क्वेश्चन आया था नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर कि हाउ डिफरेंट द नेचुरल वेजिटेशन इज. इफ यू हैव रेड द इंडिया ईयरबुक, दिस हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड देयर. तो आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वगैरह सब कुछ वो वहाँ बता देगा, सॉइल्स के टाइप्स क्या क्या है. तो देयर द इंडिया ईयरबुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड पार्ट आता है हिस्ट्री का. अब हिस्ट्री के जो है 3 पार्ट्स में पूरा सिलेबस बटा हुआ है. आर्ट एंड कल्चर इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट बट वील ट्रीट इट सेपरेटली बिकॉज मेंस में आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन सेपरेटली पूछे जाते हैं. तो हिस्ट्री में सबसे पहला जो सोर्स है जो मैंने फॉलो किया था एंशिएंट के लिए, एक तो आर एस शर्मा सर की बुक हो गई पुरानी वाली. नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक. ये 260 पेजेस की बुक है, लगता है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट देयर आर वेरियस कीवर्ड्स व्हिच आर डायरेक्टली बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक. तो ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड है तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक, पर्टिकुलरली क्लास 11 का. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आर एस शर्मा चैप्टर में जो वैदिक इकोलॉजी का पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर्ड है, लेकिन जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो संगम एज वगैरह वो उतना अच्छे से कवर्ड नहीं है. वो आपका तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री बुक में कवर्ड है. अब यूपीएससी का एक पैटर्न है, कभी वो जैसे इस साल अगर मेंस का देखोगे तो उन्होंने जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है वो इतना नहीं पूछा. दे वर मोर इंटरेस्टेड अबाउट इंक्वायरिंग अबाउट द वैदिक पार्ट. तो वो आपका जो चैप्टर्स है वो आर एस शर्मा में अच्छे से कवर्ड है, जबकि जो साउथ इंडिया का संगम लिटरेचर वाला पार्ट है पर्टिकुलरली दैट इज वेरी ब्यूटीफुली कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर थिंग. सेकंड आता है आपका मिडिवल हिस्ट्री का. अच्छा, इसमें थीम्स की एनसीईआरटी भी आती है क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10. यू कुड रीड इट बट यू कुड एज वेल एज इग्नोर इट बिकॉज जो भी उसमें रिसोर्सेज वगैरह या जो भी कीवर्ड्स हैं वो कोचिंग वालों ने काफ़ी अच्छे से कंपाइल करके रखा है. यू कैन गेट दैट इन योर टेस्ट सीरीज एज वेल. तो मैं तो क्या करता था, जो कीवर्ड्स के पीछे कभी मत भागो बिकॉज इट इज़ एन एंडलेस गेम. यू विल नेवर बी एबल टू
कंपाइल ऑल दोज टॉपिक्स. सो बेटर इज कि आप जो भी टेस्ट सीरीज दो उसमें हिस्ट्री के कभी भी टर्म्स आए, यू नोट इट डाउन समवेयर, मेक अ कंपाइलेशन एंड दैट वुड बी फर्दर यूजफुल फॉर यू, राइट. तो मिडिवल में एक सतीश चंद्र की बुक आती है एनसीईआरटी की, और वो बहुत मोटी है, मैंने कभी नहीं पढ़ी बिकॉज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी लो. तो व्हाट आई डिड वाज, जो एनसीईआरटी क्लास 8 या 9 की होती हैं उसमें उन्होंने दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर रखा है. सो दैट कैन बिकम योर वो. अदरवाइज यू कुड रीड अ कंपाइलेशन फ्रॉम एनी ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो सब आपको इक्वली गुड दे देती हैं. थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री. तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो स्पेक्ट्रम पढ़िए, लेकिन स्पेक्ट्रम में द एनालिसिस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. फॉर दैट यू नीड टू, फॉर राइटिंग गुड आंसर्स यू नीड अ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एज वेल, and that could be gained by Bipin Chandra sir's book. Now Bipin Chandra sir की बुक जो ओल्ड एनसीईआरटी है, that is very important because उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें कवर कर रखा है. जो नई एनसीईआरटी है थीम्स वाला, अब उसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट द एनालिसिस इज वेरी गुड. सो यू नॉट बी एबल टू क्रिएट अ मेंटल स्टोरी ऑफ द वो. Whenever you are reading history, try to bifurcate it. Never read it as an entire story because it would be too vast to recall at a particular moment of time. So what I did was, अब जैसे spectrum है, I divided into 3 phases. First is prior to 1857. अब जो ये वाला पार्ट है, this part, यहाँ बैटल ऑफ प्लासी कवर होता है आपका, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस है, चाहे वो डच हो, चाहे वो आपका डैनिश लोग हो, फ्रेंच हो, ये एंग्लो मराठा वॉर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रायर टू 1857 में कवर होती हैं. सेकंड आता है 1857 से लेकर 1905 तक फेज. अब इस पर्टिकुलर फेज में एक तो आपको अर्ली रेवोल्यूशनरीज वगैरह कवर हो जाएंगे. सेकंड फेज आपका होता है कि जो पोस्ट 1857 रिवोल्ट, हाउ डिड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, एक स्कोप वो आ जाएगा. थर्ड आते हैं एक्ट्स आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर्स एक्ट हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो सबसे अच्छा लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है पॉलिटी के, उतना अच्छा कहीं और नहीं दिया हुआ है. तो अब लक्ष्मीकांत पढ़िए अच्छे से इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, एंड यू कैन ऐड certain elements from the test series that you give, and that is more than sufficient. थर्ड है आपका 1905 का फेज का, मतलब आफ्टर बंगाल पार्टीशन, 1905 till modern history part. Now this is also very important because जो क्वेश्चंस आते हैं मेजरली इसी पार्ट से आते हैं. आजकल कम हो गया है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको इग्नोर करिए, यू कुड रीड इट अगेन. इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है लूसेंट की जो जीके की बुक आती है. नाउ ट्रस्ट मी, हर साल इससे 2-3 क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाते हैं. अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूँ. 2021 में सरकार सूबा वाला आया था, दैट वाज डायरेक्टली मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक. 22 में फनम आया था जो विजयनगर अंपायर के ऊपर बेस्ड है, वो भी डायरेक्टली मेंशन था इस बुक में. इस साल बहादुर शाह के ऊपर आया है, वो भी डायरेक्टली मेंशन था इस बुक में. तो ये ल्यूसेंट की जो जीके की बुक है, पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, दैट हैज टू बी रेड वेरी वेरी डिलिजेंटली बिकॉज वहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं. इसके अलावा मैंने क्या किया था, 2 पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी हर साल रिपीट करता है, दैट इज ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो पहले एक भारत एक कोच करके एक डॉक्यूमेंट्रीज आती थी, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म को उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है, जो हिस्ट्री एवोल्यूशन है. सो वो डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी अच्छी हैं, उसको आप देख सकते हैं जस्ट टू मेक योर नॉलेज मोर ब्रॉडन. अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. इस साल स्तूपा का क्वेश्चन आया. Now many people believe कि स्तूपा को एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे, लेकिन इस बार स्तूपा का एवोल्यूशन कैसे हुआ, दैट वाज द क्वेश्चन. सो दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर फैक्ट्स बट दे आर लुकिंग आफ्टर एनालिसिस, एंड दैट एनालिसिस कुड ओनली बी गेन्ड जब आप ऐसे करके कुछ यूनिक डॉक्यूमेंट्रीज देखें, जिससे आपका थोड़ा मेंटल जो होराइजन है वो ब्रॉडन होगा. तो ये कुछ सोर्सेज थे आपके हिस्ट्री के लिए. नाउ स्टिक टू देम, डोंट रन आफ्टर वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिस्ट्री पर्टिकुलरली बिकॉज ये एंडलेस हो जाएगा. यू हैव टू हैव अ मोर application based attitude when it comes to these particularly the UPSC examination, क्योंकि अब वो फैक्ट्स इतना नहीं पूछ रहे हैं. थर्ड पार्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर का. तो उसमें तो मैंने एक ही बुक फॉलो की थी, वो नितिन सिंघानिया की बुक है, और इसके अलावा क्लास 12 का एनसीईआरटी. तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें पेंटिंग्स वगैरह, अच्छा उसमें भी 2 एनसीईआरटीज, एक पेंटिंग वेंटिंग वाली है और एक आपका आर्किटेक्चर वाला है. सो इग्नोर द पेंटिंग्स वाला पार्ट बिकॉज दैट इज नॉट आस्क्ड जनरली, लेकिन अगर आपका टाइम है तो ही आप उसको पढ़िए. बट फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू क्लास 11 का पार्ट जो है, ठीक है. मेरे ख्याल से इतना करेंगे तो सफिशिएंट होगा. अब सोसाइटी की बात हम लोग कर लेते हैं. अच्छा, इस आर्ट एंड कल्चर में आपको 2-3 पैरामीटर्स पे बहुत फोकस करना है. एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर. अब जैसे इस साल
राम मंदिर का कॉन्सिक्रेशन हुआ सेरेमनी, तो वो पूछ सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के क्वेश्चंस आना, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको जो न्यूज़ करंट अफेयर्स है उसको भी कनेक्ट करते रहना अपने आर्किटेक्चर से। जैसे 2022 में एक सोमनाथ के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसी साल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पर उद्घाटन या कुछ करने, सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन केम फ्रॉम दैट। सिमिलरली क्योंकि राम टेम्पल का इस बार कॉन्सिक्रेशन हुआ है, काफ़ी चांसेस हैं कि चाहे क्लास 11 हो, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एक चीज आजकल वो पूछने की कोशिश करें, दैट इज सिंबॉलिज्म। जैसे 2022 में उन्होंने एलिफेंट्स या कुछ ऐसे मोटिव्स जो हैं उसका इंपॉर्टेंस पूछने की कोशिश की थी। इस साल भी उन्होंने जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री का क्या इंटरकनेक्शन है, क्या सिंबॉलिक इंटरकनेक्शन है, वो पूछने की कोशिश की थी। तो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आप काम कीजिए। अब इसमें क्या क्या है, एक तो आपके स्कल्पचर्स हो गए, टेम्पल्स हो गए, मोटिव्स हो गए, यूनिक पेंटिंग्स हो गई, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे इस साल दो बड़े बड़े चीज़ों का उद्घाटन हुआ, एक तो भारत मंडपम हो गया। अब उसका कहाँ से उन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर इंस्पिरेशन लिया है, जैसे बसपा जो थे वहाँ साउथ के, उनसे लिया गया है, तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे करके आप ट्राई करिए, पर्टिकुलरली आर्ट एंड कल्चर में, टू कनेक्ट जो आपका करंट अफेयर्स है विथ योर हिस्टोरिकल पार्ट, एंड जनरली अगर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस। फोर्थ इज सोसाइटी एंड सोशल इशूज। अब इसकी मैंने कोई एक बुक फॉलो नहीं की थी, मैंने दो तीन चीज़ें इसमें की थी। सबसे पहला तो एक है टॉपर के आंसर्स, पर्टिकुलरली श्रुति शर्मा मैम। तो उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सोसाइटी के नोट्स ऑलरेडी कंपाइल करके रखे हुए हैं, सो यू कुड वेरी वेल रीड दैट एंड दैट वुड बी वेरी गुड। उसमें उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली एक तो एनालिसिस भी दे रखा है, इन फैक्ट्स भी कंपाइल कर रखे हैं। सो व्हेन यू रीड बोथ ऑफ देम कॉन्कोमिटेटली, आपका स्कोर इंप्रूव होने के बहुत चांसेस हैं। सेकंड, मुझे ये लगा, मैंने 3 PIB बहुत पढ़ता हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। दिस इज अ सोर्स विच इज वेरी अंडररेटेड, बट बहुत ज़्यादा यूपीएससी यूज़ करती है। जैसे लास्ट ईयर भी इफ यू हैव सीन द 2023 पेपर, एक क्वेश्चन आया था अनीमिया मुक्त भारत के ऊपर। नाउ वर्बैटिम वो PIB से उठाया गया है, इफ यू गो बैक एंड सी इट। सो दैट इज द वो। अब इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, यू रीड ओनली 3 मिनिस्ट्रीज। एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो व्हाट इज गुड थिंग अबाउट PIB इज यू कुड ओपन द नोटिफिकेशन PIB में, और वही मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो PIB में जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आपने इन तीनों मिनिस्ट्रीज के अच्छे से PIB से आप रोज करते रहे, दैट इज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यू विल बी हैविंग काफ़ी सारा एक मटेरियल। तीसरा जो सोसाइटी में इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है PM की मन की बात। ईच एंड एवरी मंथ और प्राइम मिनिस्टर कम्स आउट विथ यूनिक एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज जो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट वुड बी यूज्ड। इसके अलावा सोसाइटी में आप जो मॉडल आंसर्स होते हैं कोचिंग्स के, कोई भी टेस्ट सीरीज आपने ली, उसके जो मॉडल आंसर्स हैं आप ट्राई करिए उसको देखने का। उसमें भी उन्होंने काफ़ी सारा करंट अफेयर्स भी दे रखा होता है, सो दैट कुड बी अगेन यूटिलाइज्ड। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज एडिटोरियल्स। जैसे इस बार अगर किसी ने पेपर देखा होगा तो चाइल्ड कडलिंग या फिर इम्पैक्ट सुसाइड के केसेस या फिर रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बीच में डिफरेंस, दीज ऑल वर कवर्ड इन द हिंदू, और दैट टू 2-3 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन। तो वो डायरेक्टली उन्होंने वहीं से पूछ लिया। सो दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटोरियल्स। आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे रोज, तब तक कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम द पेपर। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट फॉर बिकमिंग एन अकेडमिक स्कॉलर। तो इसलिए हिंदू और एक्सप्रेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ दीज वर द बेसिक रिसोर्सेज, बट दीज रिसोर्सेज आर ओनली एज यूजफुल एज हाउ यू यूज इट। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में कैसे इसको यूज़ करना है। तो मैंने चारों सेक्शन में कुछ यूनिक चीज़ें की इस बार। जैसे अगर ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया तो मैप बिकम्स कंपलसरी। विदाउट ड्रॉइंग अ मैप यू कुड नेवर बी राइटिंग अ ज्योग्राफी का आंसर, इट इज अ सिन। आपके ऑटोमेटिकली आधा नंबर कम हो जाएगा बिना कुछ किए। सो मेक श्योर दैट यू यूज मैप्स एडिक्वेटली एंड अप्रोप्रिएटली व्हेनेवर अ ज्योग्राफी का क्वेश्चन इज आस्क्ड। हिस्ट्री में आप स्मॉल टाइमलाइंस बना सकते हैं। सी हिस्ट्री का क्वेश्चन ये होता है कि जनरली लोगों के पास कंटेंट की कमी हो ही जाती है, बिकॉज इट इज सो वास्ट एंड पीपल गिव अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे इस बार का क्वेश्चन था 15 मार्कर का अबाउट दिल्ली सल्तनत।
and they said कि Delhi Sultanate है and what are the technological changes that have taken place. Most of the people didn't know many technological changes. आप 4-5 पॉइंट लिखेंगे लेकिन इससे आपका 3 पेज नहीं भरेगा. So what you can do is use timelines. अब मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में एक टाइमलाइन बना दी कि पहले ये डायनेस्टी आई, बाद में ये आई, इससे आई. इससे एक तो जगह भर गई. सेकेंडली मैंने ये दिखा दिया एग्जामिनर को कि मुझे दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा पता है. तो ये आप टाइमलाइन यूज कर सकते हैं पर्टिकुलरली हिस्ट्री वाले पार्ट में. तीसरा आपका आर्ट एंड कल्चर का अगर क्वेश्चन है तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में आपको स्मॉल माइक्रो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. जैसे अगर नगारा आर्किटेक्चर आया या द्रविड़ आर्किटेक्चर आया तो छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स यूज करिए. एंड व्हेनेवर यू ड्रॉ अ डायग्राम प्लीज रिमेंबर टू बॉक्स इट एंड लेबल इट. Just making a diagram doesn't make any sense. So please make a box and label whatever you are writing it. इससे आपका एक तो presentation improve होगा. Secondly, examiner will know कि भाई आपने क्या बनाया है. Many people think कि भाई मैंने diagram बना दिया तो value addition हो गया. It doesn't make any sense. जब तक examiner को आपका कोई भी आप चीज़ exam में लिख रहे हैं उसका purpose होना चाहिए आपका value enrichment करने का. And if the examiner is not understanding, he will not give marks. ठीक है भाई diagram बना दिया तो number दे दो इसको. That is not the purpose. So always label the diagram. तीसरा, जब सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं 2 साइकिल जरूर बनाता था. एक तो विशियस साइकिल एंड वर्चुअस साइकिल. सेकेंडली, जब सोसाइटी के क्वेश्चंस आते हैं तो पॉइंट्स कैसे जनरेट करें, दैट बिकम्स अ वेरी बिग हिंड्रेंस. तो इसमें 2 अप्रोचेस यूज कर सकते हैं. एक तो स्टेक होल्डर अप्रोच यूज कर सकते हैं एंड सेकेंड इज योर लाइफ साइकिल अप्रोच. इससे आपके पॉइंट्स बहुत ही रेडिली जनरेट हो जाएंगे एंड इट वुड बी इन अ कोहेरेंट मैनर. मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर वुमन के ऊपर भी क्वेश्चन आया तो यू कैन से कि जब शी इज फीमेल इन्फेक्टिसाइड या फीटिसाइड होता है, व्हेन शी बिकम्स एडोलेसेंट आपका अनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. जब थोड़ी और बड़ी होती है तो चाइल्डहुड मैरिजेस का प्रॉब्लम आता है. जब आपका अर्निंग एज में होता है तो स्किल डेवलपमेंट इतना नहीं होता, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होता. जब के एजेस में आती हैं देन दे सफ़र फ्रॉम हेल्थ डिजीजेस या ओल्ड एज में निगलेक्ट वगैरह हो गया. तो ये सब चीज़ों के बेसिस पर आप लाइफ साइकिल अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. और वही सोसाइटी के अगर कोई क्वेश्चन आया कि गवर्नमेंट स्कीम का क्या यूज़ है, तब आप स्टेक होल्डर अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि आपने 4-5 स्टेक होल्डर्स बना दिए एंड फॉर ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर यू ड्रॉ अ पर्टिकुलर थिंग. So this was my basic GS1 strategy. Now if you have any questions with respect to this particular question paper, please ask. किसी को कोई क्वेश्चन है? चलो फिर जनरल स्टडीज पेपर 2. तो GS2 मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है एंड इस टाइम आई एम वन ऑफ द ऑल इंडिया टॉपर्स. आई स्कोर्ड 134 दिस टाइम और लास्ट टाइम भी आई स्कोर्ड 120. तो जनरल स्टडीज 2 हैज़ ऑलवेज बीन माई फोर्टे. तो मैं शायद थोड़ा और अथॉरिटेटिव हो सकता है उसमें कि और क्या करना है. सी दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज़ 4 पार्ट्स. एक तो आता है आपका बेसिक पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड आता है गवर्नेंस. तीसरा आता है सोशल इश्यूज एंड द फोर्थ वन इज योर इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इन्हीं 4 में पूरा सिलेबस बटा हुआ है एंड नाउ वी हैव टू डिसाइफर हाउ टू गो अबाउट इट. सी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आई रेड अ फ्यू बुक्स क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी PSIR है, सो आई हैड एन एक्स्ट्रा एज. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक बुक इज पॉलिटी class 11-12 NCERT. Now trust me, this particular NCERT class 11 की पॉलिटी की NCERT is perhaps the best book written by NCERTs. उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. बी इट जो बेसिक टर्म्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ही बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ आफ्टर रीडिंग होल लक्ष्मीकांत, DD बासु सब कुछ आप पढ़ लोगे लेकिन आपको तभी समझ में आएगी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. सो वो बेसिक जो टर्म्स हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. सेकंड मैंने एक और पढ़ी थी DD बासु की बुक. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्योंकि ये में कुछ टर्म्स जो नहीं है वो इसमें आपके मेंशन है. सो DD बासु ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. थर्ड इज अगेन MA लक्ष्मीकांत सर. उनकी बुक तो खैर कोई इग्नोर नहीं कर सकता. चौथा जो मैंने मुझे लगता है डिफरेंट किया इस बार एंड दैट इज रीडिंग द बेयर कॉन्स्टिट्यूशन. आई रेड द कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 15 टाइम्स. तो मुझे सारे इसके 2 फायदे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिमेंबर द आर्टिकल्स एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो एंड यू आर नॉट इंक्लूडिंग आर्टिकल्स देन इट इज अ सिन अगेन. So please include as many constitutional articles as possible. That would not only provide enrichment to your answer, but also आप ज़्यादा comfortable feel करोगे आंसर लिखने में because you know कि आपने किसी के बेसिस पे लिखा है. सेकेंड आपका इसका ये जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज लैंग्वेज.
नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इन अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज. अब जैसे वेलफेयर स्टेट का मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, सो आर्टिकल 39 क्लॉज बी में लिखा होता है कि द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सबसर्व द कॉमन गुड. नाउ ये सबसर्व द कॉमन गुड जैसे जो कुछ इडियम्स हैं वो आप अगर यूज करोगे असली एग्जामिनेशन में, तो देन इट प्रोवाइड्स वेटेज टू योर आंसर. सो दैट वाज द मेन थिंग. तो ये 4-5 रिसोर्सेज हैं, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट. नाउ जो गवर्नेंस है दैट इज द मोस्ट डायनेमिक एंड चैलेंजिंग पार्ट, बिकॉज इसमें कोई आपका एक फिक्स सिलेबस नहीं है. लेकिन मैंने इसको तब भी कुछ पार्ट्स में तोड़ने की कोशिश की. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो बेटर इंडिया फाउंडेशन करके एक है वेबसाइट, उसमें उन्होंने जो भी गवर्नेंस के मॉडिफिकेशंस या कुछ हो रहे हैं लास्ट 5 इयर्स में, या सिविल सर्वेंट से अच्छा काम क्या किया है, या और क्या एथिक्स में आप कर सकते हो, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकते हो. नाउ दिस इज अगेन यूज्ड इन GS4 एज वेल, बिकॉज दिस हैज द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस सिविल सर्वेंट्स जो आप यूज़ करते हैं. अब बहुत ही हो गए, मार्केट में बहुत सारे एग्जांपल्स आ गए हैं, लोग सिर्फ उसी को कोट करते रहते हैं बार बार, एंड दैट वुड नॉट गिव यू मार्क्स इन योर GS2 या GS4. सो प्लीज ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. और उसके लिए आपका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा है, बेटर इंडिया फाउंडेशन, बिकॉज आपको फ्रेश न्यू एग्जाम्पल्स देगा. तो एक ये होता है. दूसरा आप ये कर सकते हो कि योजना, हर एडिशन में योजना के जो हर महीने आती है, कोई एक गवर्नेंस का जो जिसमें हम लोग लैक कर रहे हैं उसके बारे में वो बताता है पूरा. तो आप योजना को पढ़ सकते हो जस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज अबाउट द गवर्नेंस एस्पेक्ट. तीसरा जो मैंने गवर्नेंस में यूज किया था वो थी M. कार्तिकेयन की बुक, एक गवर्नेंस इन इंडिया करके. अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ. अब क्या हो गया है कि अब बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आने लगे हैं. बीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, अब वो ये नहीं पूछते कि आरपीए क्या है या क्यों बनाया गया है. नाउ दे आर आस्किंग स्पेसिफिक केस स्टडीज या केस लॉज, आप बताइए आरपीए के. इस साल भी सेम चीजें आई. या आरटीआई कभी पूछ लिया, अगर आपने जेनरिक आंसर दे दिया आरटीआई के बारे में, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मार्क्स अनलेस यू पॉइंट आउट कि देयर आर वेरियस आर्टिकल्स विद इन द आरटीआई, लाइक सेक्शन 2 जो इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, सेक्शन 8 जो एग्जेम्पशन की बात कर रहा है, टाइमलाइंस हो गए आपके. तो वो सारी चीजें तक मेंशन नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव दिस. मैंने ये बुक फॉलो की थी, उससे मेरे को ये सारे पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मिल गए GS2 में. तो ये गवर्नेंस का ये है. चौथा अगेन PM की मन की बात, ये रिसोर्सेज काफ़ी यूज़ होंगे आपके. तो ये 3-4 रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं. इंडिया ईयर बुक इज ऑल्सो वेरी गुड. एंड ट्राई, इसमें आप एक ट्राई करिएगा कि आप बेसिक इसको पार्ट्स में बांट लीजिए. जैसे गवर्नेंस की बात करते हैं तो एक तो वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन क्या हो गया गवर्नेंस का, 6 इंडिकेटर्स क्या है वर्ल्ड बैंक के गवर्नेंस के लिए, नीति आयोग की जो नीति एक्ट 75 की रिपोर्ट है. अब सेकंड ARC वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन सेकंड ARC वगैरह बहुत पुरानी हो गई हैं अब, and its recommendations are perhaps redundant in many cases. So what you can do is you can read the NITI at 75 document. अब इसका भी मैंने क्या किया था, मेरा टाइम कम था तो मैंने ChatGPT यूज़ किया इस बार काफ़ी. तो मैंने ChatGPT में बोला कि प्लीज़ प्रोवाइड अ समरी ऑफ नीति एट 75. या मान लो कोई एक मिनिस्ट्री का पब्लिकेशन आया है, सो यू कुड सिंपली राइट कि प्लीज़ प्रोवाइड अ समरी फॉर दिस इन 1000 वर्ड्स. तो ChatGPT आपको उसकी समरी बना के पूरी निकाल के दे देगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन बिकम स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन. तो ये 2-3 चीज़ें मैंने इस बार की और उससे मेरा टाइम भी बचा, प्लस एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो गई. प्लस जो ChatGPT का एल्गोरिथम इतने अच्छे हैं कि वो कीवर्ड्स बहुत अच्छे से ढूंढ पाता है. एंड दिस एग्जामिनेशन इज एंटायरली अबाउट कीवर्ड्स. तो आप जितने कीवर्ड्स यूज़ करेंगे अपने पेपर में, आपके मार्क्स उतने इंप्रूव होंगे. बिकॉज 150 वर्ड्स अगर आप सिर्फ रिटोरिक लिख के आएंगे तो एक तो आपका टाइम जाएगा, पेपर खत्म नहीं होगा और एग्जामिनर को आप सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज हाउ नीति एट 75 रिपोर्ट कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विद इंडिया ईयर बुक. तो दीज 2 बुक्स अभी बहुत बल्कि है दोनों. तो जो पार्ट्स में आप कमजोर है सब उन्हीं पार्ट्स में लिखिए. आजकल क्वेश्चंस गवर्नेंस में एक तो ई गवर्नेंस से बहुत आ रहा है, तो मैंने तो इसका हर चीज़ पहले से ही बना के रखी थी कि जैसे ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन की रिपोर्ट है साइबर क्राइम्स पे, या केएस पुट्टास्वामी जजमेंट है, या फिर आपका ई गवर्नेंस को नंदन नीलेकनी रिपोर्ट आ गई आपकी कि कैसे आप ई गवर्नेंस को और यूज़ कर सकते हैं. सेवोत्तम मॉडल में आपको क्या क्या करना है. एक वर्ड आता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो वो गवर्नमेंट में आप कैसे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या आपके पास क्या क्या चैलेंजेस हैं. एस्टोनिया मॉडल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो बताता है कैसे उन्होंने अपने हर चीज़ को ब्लॉकचेन पे कर दिया है. तो ऐसे करके आप कुछ यूनिक एग्जांपल्स गवर्नेंस के लिए पहले से कलेक्ट करके रखिए. इंडिया में जैसे राजस्थान का है एक वन पोर्टल, वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया. प्रगति पोर्टल कैसे यूज़ करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये सारे कुछ ऐसे यूनिक एग्जाम्पल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आप उसको भी बड़े इंपॉर्टेंटली यूज़ कर सकते हैं. तो अगर गवर्नेंस का कोई पिछली स्कीम आई तो आप उसको इस साल की स्कीम में यूज़ कर सकते हैं. जैसे माइनॉरिटी का 2021 में अर्न एंड लर्न स्कीम आई थी,
तब मुझे पता नहीं था, तो इस बार मैं उसको यूज़ कर पाया अपने किसी और पार्ट्स में। फिर गवर्नमेंट ने कैसे और चीज़ों को लिबरलाइज करने की कोशिश की है, तो आप वो सब भी देख सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 एस्पेक्ट्स हैं, इसमें से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट हमेशा इस गवर्नेंस पे रहता है कि आपको जो अपना वैल्यू एडिशन है वो बहुत स्ट्रांग रखना है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम हो, चाहे वो कुछ ऐप्स का नाम हो, जैसे फार्म्स ऐप हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर के लिए, तो जो एग्रीकल्चर गवर्नेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसी चीज़ें करके अपना इनोवेशन ला सकते हैं उसमें। तीसरा आता है आपके सोशल इशूज़। नाउ दिस अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी 3 पार्ट्स में जनरली क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। एक तो आपका एजुकेशन में पूछेंगे, एक आपका पॉवर्टी के रिलेटेड पूछते हैं, एक आपका हेल्थ के रिलेटेड पूछते हैं ये लोग, और चौथा ऑब्वियसली वुमेन्स के ऊपर पूछते हैं कि वुमेन या ओल्ड या फिर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं आपके, और माइनॉरिटीज। तो मैंने तो इन सबकी हेडिंग बना ली थी, 5-6 पेज बना लिए, और इन 506 जो सेक्शन है सब में मैंने अपने जो भी वैल्यू एडिशन करना है मैंने कर लिया। अगर एजुकेशन का है तो एजुकेशन में क्या क्या लिख सकता हूँ, फिर आपका एनईपी रिपोर्ट हो गया, वो आपका एक बेस बन जाता है। तो आप ऐसे करके अपने सारे जो सोशल इशूज़ हैं उनको 6-7 पार्ट्स में बांट लीजिए, हर पार्ट में इंप्रूव करने की कोशिश करिए। अब अगर मुझे अब जैसे पॉवर्टी का है, तो पॉवर्टी का आप जैसे मैंने विवेक संघ सर की बुक यूज़ की थी अपनी पॉवर्टी के लिए, या कोई भी कोचिंग के नोट्स हो गए आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने पॉवर्टी का इन्हांसमेंट करने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि मैं इन सब में कैसे किया। अब जैसे हेल्थ है, तो अगर टाइम है तो मैं तो क्या करता था कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है। एनुअल रिपोर्ट पूरा कुछ मत पढ़िए आप, जो एग्जीक्यूटिव समरी आती है पहले 2 पेजेस में, बस उतना पढ़ लीजिए। उसमें वो पूरे मिनिस्ट्री ने पूरे साल क्या किया है, या पिछले 5-6 सालों में क्या करके आगे बढ़ना चाहती है, वो सब चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। तो अब बस वो एक एग्जीक्यूटिव समरी का पेज पढ़ लीजिए, उसको आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशल इशूज़ के लिए। अब जैसे थालीनॉमिक्स है, अब वो इकोनॉमिक सर्वे का वर्ड है, अब आप उसको डायरेक्टली अपना यूज़ कर सकते हैं कोट करते हुए। फिर आपका एक तो बजट है, हर साल बजट में बहुत अच्छे वो दे देते हैं, जैसे कि सप्तऋषि प्रिंसिपल हो गया, रीचिंग द लास्ट माइल हो गया। तो ये सारे आपके कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं। और कुछ एनेक्डोट्स मैंने खुद अपने इसमें यूज़ किए थे, जैसे कि अगर कभी भी सोशल इशूज़ का क्वेश्चन आया, मेरा क्योंकि ऑप्शनल PSIR था तो मैं रॉल्स का यूज़ करता था, डिफरेंस प्रिंसिपल, कि दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड, या फिर सर्वोदय से अंत्योदय का वर्ड हो गया। तो ये सारे वर्ड्स आप अपना इसमें यूज़। अब जैसे कास्ट सिस्टम पे अगर सोशल इशूज़ पे क्वेश्चन आ गया, या मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन पे आ रहा है माइनॉरिटीज अगेंस्ट, तो बहिष्कृत भारत से प्रबुद्ध भारत, ये अम्बेडकर जी का वर्ड था। तो ऐसे करके आप वर्डिंग कुछ 3-4 बना के रखिए, इससे आपका जो मार्क्स है ये ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। SDG सारे रट लीजिए, SDGs काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। अब इसका भी कोई मिनोमिक वगैरह बना लीजिए, नहीं तो रटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से SDG का। तो ये कुछ सोशल इशूज़ के हैं। अगेन इसमें इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी इस पर इंपॉर्टेंट रहता है। और सोशल इशूज़ में एक टॉपर पहले रह चुके हैं, मृदुल शिवरे सर करके, तो उनके भी काफ़ी अच्छे नोट्स हैं इन सब टॉपिक्स पे इंडिविजुअली। उनका टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। लेकिन इन सब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सबके बेसिक चीज़ें रट लीजिएगा। जैसे पॉवर्टी है तो यू शुड हैव द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, और वो भी अपडेटेड वाली। अब वर्ल्ड बैंक ने अपना जो इंडिकेटर है वो बढ़ा दिया है, पहले $1.9 था, 2.15 हो गया है। कमिटीज़ कौन कौन सी आई, तेंदुलकर कमेटी वगैरह हो गई, इन सब का क्या डेफिनेशंस है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए पॉवर्टी का। करंट रेट में अभी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे नीति आयोग ने एक इंडेक्स निकाला है, उसके क्या क्या फाइंडिंग्स है। तो इसमें बुक्स की जगह जो जो रिपोर्ट्स चल रही है मार्केट में अभी, या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, या कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी ने पब्लिश किया है। अब अगर आपका ये आएगा वुमेन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है। अभी हम लोग सब रट के जाते हैं जब हम लोग अपना प्री देने जाते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो आपको ये सब नहीं भूलना है। अगर आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, नाउ दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अ वेरी वैल्यूएबल एडिशन व्हेन यू आर राइटिंग आंसर विद रिस्पेक्ट टू ये। जिनी कोएफिशिएंट हो गया, सबने पढ़ा है जिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, लेकिन हम सिर्फ उसको प्री तक रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। बट यू शुड ट्राई टू, जो आप फैक्ट्स रट रहे हैं प्री के लिए, यू शुड ट्राई एंड यूज इट इन योर मेंस एज वेल। तो आपको उसी तरह पढ़ना है, इसलिए बोला मेंस की तैयारी अच्छे से करिए, प्री अपने आप निकल जाएगा। तो ऐसे करके जो 2-3 मैंने रिपोर्ट्स वगैरह रट ली थी कि भाई अगर वुमेन पे आएगा तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, पॉवर्टी पे आएगा तो जिनी कोएफिशिएंट हो गया मेरा, आपका एजुकेशन पे आएगा तो जैसे आइश रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एसर रिपोर्ट आती है आपकी प्रथम की। तो ऐसे करके आप चीज़ें इसमें वैल्यू ऐड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल केस स्टडीज़ हो गई, जैसे एजुकेशन पे तो सिंगापुर मॉडल ऑफ एजुकेशन हो गया आपका,
दैट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन द वर्ल्ड। तो आप इसको पढ़ के एक बार देखिए इन्होंने क्या चेंजेस किए जो हम नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं सोशल इशूज़ के लिए। लेकिन बेसिक मैंने मृदुल शिवरे सर के नोट्स रखे, दैट वाज माय फाउंडेशनल पार्ट। इसके अलावा जो सोसाइटी का आपका वो है एनसीईआरटी क्लास 11-12 की, वो GS1 में भी यूज़ हो जाएगी, वो शायद मैं बोलना भूल गया, और फिर इसमें भी यूज़ हो जाएगी। तो आप ऐसे करके इंटरकनेक्शंस बना सकते हैं। अब चौथा आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। आई थिंक दिस इज द मोस्ट बोरिंग। अगर आपने IR के क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, 4 ही आते हैं एंड चारों के चारों प्रिडिक्टेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या वो पूछते हैं हर साल। एक तो कोई बॉडी पूछ लेंगे जो न्यूज़ में, इस साल SCO पूछ लिया था। SCO वॉज इन न्यूज़ बिकॉज इंडिया होस्टेड इट 2023 में। नेटो वॉज इन न्यूज़ क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर है, तो दे आस्क्ड अबाउट नेटो। सेकेंड चीज़ क्या वो पूछते हैं रिलेशंस में, इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर। कभी अब वो इंडिया US, इंडिया चाइना, इंडिया इसराइल का पूछ लेते हैं, इंडिया जापान हो गया। तो ऐसे जो मेजर रिलेशंस है या तो वो इसमें पूछेंगे। अब उस बॉडी में जनरली वो एक क्वेश्चन पूछेंगे, इंडियाज रिलेशन विथ वो उसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक जो करंट अफेयर्स पे चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब वो कोई अग्रीमेंट हो सकता है आपका, या फिर आपका कोई मान लीजिए डिप्लोमेटिक जो बेसिक टर्म है, जैसे इस बार डायोस्पोरा पे पूछ लिया था, 2021 में उन्होंने और भी IMO पे पूछ लिया, इस बार वो आपका बॉडी पे आ गया है। तो वो एक लेसन नोन फैक्ट है। लेकिन इन्हीं 3 चीज़ों पे आता है, एक तो बॉडी पूछ सकते हैं, कोई आपका इंडिया रिलेशन विद मेजर पावर हो गया, या फिर कोई अग्रीमेंटेड न्यूज़ जो करंट अफेयर्स है आपका। तो आप 2 क्वेश्चन तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन उनके रैंडम रहते हैं। अब इसको करने का या सोर्स क्या है इसका, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के सोर्सेज क्या है। सबसे पहले तो मैं इसमें ये करता था कि एक वर्ल्ड व्यू करके आता है सुहासिनी हैदर मैम का न्यूज़ पे। आप वो हर हफ्ते 18 मिनट का वीडियो निकालती हैं एंड शी समराइजेज व्हाट ऑल हैज ट्रांसपायर्ड इन द एंटायर वीक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। सेकेंड है, आप एक्सप्रेस पढ़िए, और एक्सप्रेस में 2 लोगों के आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो C राजा मोहन हो गया और दूसरा हो गया हर्षी पंत, उनके ORF में भी आते हैं ना। ORF इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरा जो इसका बेसिक्स है, वो कोई भी आप करंट अफेयर का कंपैरिजन ले सकते हैं जो ईयरली मेंस का होता है, उसमें सफिशिएंटली हर चीज़ कवर रहती है। चौथा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वेबसाइट में अगर जाएंगे आप, तो उन्होंने अब जैसे बोला इंडियाज रिलेशन विद मेजर पावर्स, MEA ने 2-2 पेज के डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, हर रिलेशन ऑफ इंडिया विद एनी मेजर पावर। तो आप उनको देख सकते हैं और उससे आप अपने कंपाइलेशन उनका डायरेक्टली बना है, नोट्स फॉर्मेट में बना हुआ है कि भाई ये इसका इंट्रोडक्शन कि इंडिया का रिलेशन इसका, मान लीजिए US का क्या है, तो जो US का एम्बेसी है, इंडिया का जो एम्बेसी US में, उसी ने ये डॉक्यूमेंट पब्लिश कर दिया है कि इतना भी हमारा ट्रेड है, ये जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, ये हमारा साइंस एंड टेक में लेवल ऑफ कोऑपरेशन है, ऐसे हम लोग आगे और बढ़ सकते हैं। सो दे हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड एवरीथिंग। अब सीधे MEA पे जाइए और ये वेबसाइट पे आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पर ChatGPT भी यूज कर सकते हैं। जस्ट टाइप 1000 वर्ड्स फॉर इंडिया US रिलेशन इकोनॉमिक एस्पेक्ट फॉर UPSC एग्जामिनेशन, वो आपको पूरा का पूरा आपका वो समरी दे देगा। इसके अलावा रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसे मैं बोला एक्सप्रेस का मैं हर रोज़ पढ़ता था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अलावा काफ़ी मुश्किल काम है। अब इसमें वैल्यू एडिशन आप कैसे करें, तो सब लोग तो ये करते हैं, मैंने इस बार इसमें एडिशन क्या किया कि मैंने IR का जो PSIR में मैं टर्म्स यूज़ करता हूँ, पर्टिकुलरली स्कॉलर्स के नाम। नाउ बाय स्कॉलर्स आई एम नॉट सेइंग जो अकेडमिक स्कॉलर्स हैं, आई एम सेइंग डिप्लोमैट्स, जैसे सर्गे लैवरोव हो गया चाइना के, या फिर आपका वांग यी हो गया, सर्गे लैवरोव हो गया रशिया के, वांग यी हो गया चाइना का, डेविड कैमरून हो गए UK के, एंथनी ब्लिंकन हो गए आपके US के, S जयशंकर, अजीत डोवल सर हो गए इंडिया के। तो ये सारे आप टर्म्स फ्रीली यूज़ करिए। अगर SCO के बारे में आ रहा है तो आप बताइए S जयशंकर ने ये सब बोला इसमें, तो आपका ये एक अथॉरिटेटिव फिगर हो गया। नाउ दीज आर नॉट कंसिडर्ड स्कॉलर्स, ये ऐसे टर्म्स हैं जो हर इंसान को पता होगा बिकॉज दे आर ऑल्सो रीडिंग न्यूज़पेपर्स लाइक अस। तो उनको पता होगा कि ये सारे जो टर्म्स, ये जो सारे स्टेट्समैन हैं या सारे डिप्लोमैट्स हैं, इनकी बातें बहुत अथॉरिटेटिव होती हैं, तो आप उनको डायरेक्टली कोट करिए, इससे आपके नंबर बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। प्लस इसमें आप मैप्स अगेन बहुत ड्रॉ करिए। जैसे SCO का क्वेश्चन इस बार आया तो मैं मैप पे मैंने बता दिया कि ये कंट्रीज जो हैं ये पार्ट ऑफ SCO हैं, तो इससे, या डायस्पोरा का क्वेश्चन आया तो मैंने वर्ल्ड मैप बना दिया और हर जगह डायस्पोरा दिखा दिया कि कौन सी कंट्री में किधर है, तो इससे आपका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये प्लीज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
ये आपके बेसिक हो गया, लेकिन जो आपका बेसिक सोर्स होगा वो करंट अफेयर का कंपाइलेशन होगा, वो आपको हर एक चीज़ के बारे में बता देगा। और मैं 2 साल का पढ़ता था ये IR के लिए, 2 years, जैसे इस साल आएगा उससे पिछले साल वाला भी, उसका आप वैल्यू एडिशन इन पॉइंट्स में कर सकते हैं। अब IR के आप जब भी आंसर लिखें, कुछ कीवर्ड्स हैं जो लिखने से आंसर और ब्यूटीफुल लगने लगता है, जैसे रियलिज्म हो गया या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को एनालाइज करने के लिए आया, तो आप रियलिज्म का एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। इंडिया UN में क्यों अपना कंटिन्यूअस सपोर्ट देता रहता है, तो आप लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की बात कर सकते हैं। अगर कोई सोल्यूशन निकालना है क्या करें, तो फंक्शनलिज्म है ना। दीज आर टर्म्स दैट आर यूज्ड इन PSIR, लेकिन आप इसको एज ए कीवर्ड जनरली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इज इन योर GS2 आंसर्स एज वेल। सो दैट वर्क फॉर मी आई थिंक दिस टाइम, इससे मेरे को काफ़ी मदद मिली। तो आप ऐसे कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन मत करिए। अब जैसे मैंने पहले बताया था, क्या क्या आपको सेक्शन वाइज करना चाहिए अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो अगर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो इसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स जो जूरिस्प्रूडेंस पे काफ़ी माहिर हैं उनके नाम लिखता था। अब जैसे कि ग्रैनवेल ऑस्टिन हो गए, A.V. डाइसी हो गए, K.C. वियर हो गए। तो दीज आर जस्ट सम एग्जांपल्स जो आप पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट्स में लिख सकते हैं। इनमें आप प्लीज डायग्राम वैग्राम स्कीमेटिक्स मत बनाइएगा, इट इज़ अ वेरी अकेडमिक रिच वो, आप इसको जितना फॉर्मल रख सकें, पर्टिकुलरली जो 4 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उतना अच्छा है। सेकंड जो चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की थी, दैट इज राइटिंग कोट्स। जैसे इस बार टेस्ट ऑफ जुडिशरी का क्वेश्चन आया था एक, तो मैंने कहा लॉर्ड ब्राइस का एक कोट है कि टू टेस्ट द गवर्नेंस ऑफ कंट्री इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इंडिपेंडेंट द जुडिशरी इज। या पार्लियामेंट्री कमेटी पे क्वेश्चन आया था, तो वुड्रो विल्सन ने लिखा है कांग्रेस इन पार्लियामेंट इज कांग्रेस एट डिस्प्ले, कांग्रेस इन कमेटी इज कांग्रेस एट वर्क। तो इससे मैंने अपना आंसर शुरू किया। तो दीज कोट्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यू एनरिचमेंट टू योर आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम ये, तो ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया। जहाँ भी गवर्नेंस का आता है वहाँ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे सेवोत्तम मॉडल हो गया, इससे आप आंसर अपना खत्म कर सकते हैं। अगेन फ्लो चार्ट्स इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या स्पाइडर डायग्राम्स हो गए। एंड ऑलवेज ट्राई एंड कनेक्ट गवर्नेंस विद पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी गवर्नेंस का आया, जैसे ई गवर्नेंस या RTI हो गया, तो आप बोल सकते हैं आर्टिकल 19 जो है इसको इंपॉर्टेंट बनाता है। सेकेंडली इन दोनों में, अच्छा अब ये आफ्टर द बेसिक चीज़ें कि कमेटी के नाम लिखने हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के नाम लिखने हैं, ये तो लिखने ही लिखने हैं सब में। तो बोलो इसके बाद और स्पेसिफिक कैसे हो सकते हैं अपने आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। सोशल इश्यूज का अगर क्वेश्चन आ गया, देन अगेन द साइकिल्स, जैसे हम GS1 में यूज करते थे वैसे साइकिल्स आप यूज कर सकते हैं, वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल और ये सारे साइकिल्स। इससे आपका वैल्यू एडिशन और बेटर हो जाएगा, प्लस फ्लो चार्ट्स अगेन। एंड देन IR में आपको जैसे मैं बता चुका हूँ मैप मेकिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ GS2 के बेसिक पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक जो आपके मार्क्स को फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपने GS3 में। तो जनरल स्टडीज 3 अगेन इज बाइफर्केटेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला तो आपका है इकोनॉमी, दूसरा इन्वायरमेंट, तीसरा आपका साइंस एंड टेक, चौथा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट / इंटरनल सिक्योरिटी। तो इन्हीं 4 पार्ट से पूरा आपका सिलेबस बटा हुआ है। अब इकोनॉमी की अब कैसे करें, पहला तो फिर से बेसिक अगेन, दैट इज योर NCERT, क्लास 11 की NCERT स्पेसिफिकली जो मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैक्रो इकोनॉमी की NCERT है। अब उसमें आपका जो भी बेसिक है कि GDP क्या होता है, रेमिटेंस GDP का पार्ट है कि नहीं है, क्लोज साइकिल्स क्या होते हैं, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, आपका जो इन्फ्लेशन है उससे जो करेंसी का अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन है वो कैसे इम्पैक्ट होता है, और उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे इम्पैक्ट होते हैं, उन सब के जो रिलेशन से जो UPSC जनरली पूछता है वो की अंडरस्टैंडिंग आपका इस पर्टिकुलर क्लास 11 की NCERT से आती है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है जो मैंने नोट्स यूज किए थे, दैट इज फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे एंड योर बजट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बिकॉज ये आपका क्या करता है कि जो भी कीवर्ड्स हैं, अब जैसे मैं आपको 2-3 कीवर्ड्स बताता हूँ जो मैंने इस बार भी यूज किए। एक इस बार MSc पे क्वेश्चन आया था एक, तो उसमें मैंने म्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग, चक्रव्यूह चैलेंज, मिडिल स्टैंड मॉडल, या फिर आपका चेबोल मॉडल हो गया। अब जैसे मिडिल स्टैंड मॉडल जर्मनी का केस स्टडी है,
मिटेलस्टाट मॉडल के आपसे वो बताने की कोशिश करता है कि जर्मन एमएसएमईज ने कैसे अपने आप को इतना इंप्रूव कर लिया. सो दैट इज वन वैल्यू एडिशन दैट आई डायरेक्टली टुक फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे. एक और है आपका चेवोल मॉडल. नाउ दिस इज अ मॉडल फॉलोड बाय साउथ कोरिया. अब एलजी अपने आप से इतना बड़ा कंपनी नहीं बन गया, या सैमसंग अपने आप से इतना बड़ी कंपनी नहीं बन गई. सैमसंग ऑल्सो स्टार्टेड एज एन एमएसएमई, बट साउथ कोरियन गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्यूज्ड फंड्स विद इन दी सैमसंग ताकि वो स्केल को अचीव कर पाए कि वो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो जाए. सो दिस इज हाउ इंडियन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हेल्प दी एमएसएमई सेक्टर सो दैट इट कुड अचीव ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस. तो ये आपके कुछ हो गए. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका. तो ये कुछ ऐसे मैं टर्म्स फर्स्ट बता रहा था कि जो आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपका सोर्स हो जाएगा इकोनॉमी के लिए, एंड दैट इज योर मिंट का न्यूज़पेपर. कुछ मत पढ़िए पेपर में, बस जो इकोनॉमी वाला पार्ट आता है 2-3 उसमें आर्टिकल्स आते हैं, यू कुड डायरेक्टली रीड दैट. इस अलावा इन शॉर्ट्स शायद किसी ने सुना हो, या फिन शॉर्ट्स होता है, तो उस वो 60 वर्ड्स में होता है, हर रोज आता है और आपका कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को वो कवर कर लेगा. सो इकोनॉमी में इसलिए बार बार थोड़े डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज बोल रहा हूँ, बिकॉज जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर नॉट फैक्चुअल इन नेचर, दे आर मोर बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. अब जैसे कि अगर किसी ने बोल दिया कि करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो आपका एक्सपोर्ट्स होगा कि इंपोर्ट्स बढ़ेगा कम होगा, ये कैसे होगा, वो आप ऐसे नहीं बता सकते कि आप रट के गए होंगे. सो यू नीड अ बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज, एंड दैट ओनली कम्स व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ स्टफ, पर्टिकुलरली इकोनॉमी. तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई. जो कोचिंग का मटेरियल आता है वो भी इक्वली सफिशिएंट है. वंस यू रीड योर बेसिक मटेरियल्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू, then you solve a few questions, be it your mains or NCERT, mains or your prelims, and after that if you find कि नहीं अभी भी गुंजाइश है to improve, then you could perhaps go on to the value additions. But first try and finish whatever foundational materials have been given to you. That will form your basic knowledge, and to convert it into wisdom you need to apply it, so you can adjust accordingly. तो ये कुछ basic sources जो आप economy की use कर सकते हैं. तीसरा आता है आपका environment के questions. अब इसमें मैंने एक जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, दैट इज़ PMFIS की बुक. आई फाउंड इट वेरी वेरी इनरिचिंग फॉर मी. मैंने इसको काफ़ी बार पढ़ा और हर बार जब पढ़ता तो कुछ नया ही मुझे देखने को मिलता था. इसके अलावा एक है बायोलॉजी की NCERT, लास्ट 4 चैप्टर्स. ओके. तीसरा इसमें आता है आपका अगेन MOFSI का एग्जीक्यूटिव समरी. जैसे मैं आपको बताया मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री करती है, उसका बस आप एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ लीजिए तो योर वर्क वुड बी डन. तो ये कुछ इन्वायरमेंट के. इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज आई अगेन वॉच्ड अ लॉट. अब जैसे बेयर ग्रिल्स का आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, किसी ने देखा हो तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड पहले लगता था बचपन में इंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन आप जब आप उसको दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्वायरमेंट के लिए कितना फ्रेंडली है वो, आपके मतलब प्रीलिम्स के इन्वायरमेंट के लिए. सो बेयर ग्रिल्स तो मैं अभी भी देखता हूँ, वो काफ़ी अच्छा आता है उसका. जैसे अभी कुछ दिन पहले और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शूटेड अ वीडियो विद बेयर ग्रिल्स नेशनल पार्क में, तो कैसे उनका वेजिटेशन वगैरह चेंज हो रहा है. अब यू नेवर नो इन प्रीलिम्स व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, बिकॉज दिस टाइम अराउंड ऑल्सो वैगल डांस किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दे वुड बी आस्किंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो नाउ द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट रटना कि भाई रामसर साइट कहाँ पर है या कौन सा नेशनल पार्क किधर है. इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ एनिमल्स. जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था नॉक्टर्नल एनिमल्स का ऊपर, तो जब तक आपको बिहेवियर नहीं अंडरस्टैंड होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. तो दीज आर वो. अब इसमें डॉक्यूमेंट्रीज में भी जैसे मैंने बोला बेयर वर्सेस वाइल्ड, इसके अलावा और प्लैनेट है या फिर फैंटास्टिक फंजाई हो गया. तो ये कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हैं विच आई यूज टू वॉच इन माई फ्री टाइम, एंड दैट हेल्प मी अ लॉट इन माई एनवायरमेंट का प्रिपरेशन. इसके बाद साइंस एंड टेक आता है. नाउ साइंस एंड टेक में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं. एक आता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक आता है एप्लीकेशन के बेस्ड. तो इसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं. जैसे इस बार मैं एप्लीकेशन का आपको बताऊं तो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट आया और हेल्थ डायग्नोसिस में कैसे यूज होता है वो उसका एप्लीकेशन पूछा. चंद्रयान 3 के बारे में आया. तो दैट इज द क्वेश्चन. अब जब एप्लीकेशन बेस्ड होता है इट इज मोस्टली करंट अफेयर्स, जैसे चंद्रयान 3 या जेम्स वेब टेलीस्कोप जो 2022 में आया था, या फिर LED लाइटिंग्स का हो गया. और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं दे आर कंटेम्प्रेरी इन नेचर. नाउ लेट मी इलैबोरेट विद एन एग्जांपल. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्वेश्चन आया इस बार एक, राइट. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाज द एप्लीकेशन पार्ट, या चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन पार्ट एंड वाज बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स. जो AI का पार्ट है दैट इज अ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. तो ऐसे ये 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग. 2 में एक क्वेश्चन दोनों करंट अफेयर्स बेस्ड होंगे, एक दोनों आपके कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बेस पे होंगे. तो यू हैव टू प्रिपेयर स्मार्टली हियर.
जैसे इस साल अगर कोई क्वेश्चन अगर मुझे बोले मेंस में, तो जैसे आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आ सकता है। अब उसी का कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है सन के लिए। सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंटरलिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो। तो आपको भी पढ़ना ऐसे है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ब्लॉकचेन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वैक्सीन कैसे बनाते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको उस तरह से इसको रीड करना पड़ेगा और फिर इसका एप्लीकेशन आप देख लीजिए। अब साइंस एंड टेक का मैंने मोस्टली जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं दैट आई यूज्ड, अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो एक्सटेंसिवली सॉ डॉक्यूमेंट्रीज अगेन फॉर दिस पार्ट एज वेल। तो इसके थ्रू मुझे लगता है मेरे को फायदा हुआ साइंस एंड टेक में। तो एज आई वाज सेइंग कि इससे काफी, अब साइंस एंड टेक में भी आप कुछ चीजें प्रिडिक्ट बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ इट इज एवरीवेयर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले से डायग्राम बना के गया था कि अगर एआई का क्वेश्चन आएगा तो पहला होगा एआई, फिर होगा आपका मशीन लर्निंग एमएल, फिर होगा आपका डीएल और अंदर आएगा न्यूरालिंक। तो ये मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था और इस बार एआई का क्वेश्चन आ भी गया। तो ऐसे आप कॉन्सेप्ट्स देख लीजिए जो न्यूज़ में है और उसी को आप बिल्डअप करने की कोशिश करिए। अब यूपीएससी का पैटर्न है, वो एक साल जिस साल बायोटेक के क्वेश्चन पूछेगा कॉन्सेप्ट में, उस साल साइंस एंड टेक का नहीं पूछेगा। 2022 में इट वाज मोर बायोटेक बेस्ड, चाहे वो सेल्यूलोज हो चाहे वो वैक्सीन हो। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि नेक्स्ट ईयर वो दोबारा बायोलॉजी के थीम्स को रिपीट नहीं करेगा एंड वुड बी डेल्विंग मोर इनटू योर साइंस का एस्पेक्ट। इस साल मोस्ट प्रॉब्ली फिर से बायोटेक पे क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा गया। तो दिस टाइम रीड केयरफुली अबाउट द डेवलपमेंट्स इन बायोटेक्नोलॉजी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। 2022 में उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी थी जो डायरेक्टली बायोटेक से बेस्ड थी आपकी, चाहे वो आपका प्रोबायोटिक्स हो, चाहे आपका वैक्सीनेशन का प्रॉपर्टी हो। लास्ट ईयर उन्होंने क्यूबिट्स और ये सब चीज़ों के बारे में पूछा 2023 में, या सेफिट्स क्या होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन का। तो इस साल फिर से हो सकता है कि बायोटेक पे वो दोबारा पूछे। तो जस्ट ट्राई एंड एनालाइज दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स, और अब जनरली वो मेंस के लिए जो ट्रू हो जाता है, प्रीलिम्स अगेन इज वेरी डाइसी। तो ये बेसिकली साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस थे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज योर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। अब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चन है दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो साइक्लोन, आपका अर्थक्वेक, वोल्केनो, फॉरेस्ट फायर, इन सब चीज़ों पे आपने अगर नोट्स बना लिए जो वो पिछले PYQs में पूछे गए, तो यू विल बी एबल टू टैकल इट वेरी स्मार्टली। इसके अलावा 2-3 कीवर्ड्स हैं जो आप हमेशा डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चंस में यूज़ करके आइए। एक तो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2016 का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि क्या होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया 2005 का, उसका बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या होता है, ह्योगो फ्रेमवर्क क्या होता है, CDRI का भी रिसेंटली भी एक भारत मंडपम में 21 से 24 अप्रैल को एक वो सेमिनार हुआ था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें निकली होंगी, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह उसमें देख सकते हैं। तो ये मैं बोल रहा हूँ 4-5 जो टर्म्स है अगर आपने आंसर में यूज़ कर दिया और हाईलाइट कर दिए तो उनको पता चल जाएगा। बिल्ड बैक बेटर कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। लास्ट ईयर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था दोनों को मिक्स करके, डिजास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट का, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फ्यूचर में इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, पर्टिकुलरली विद द सी लेवल राइज, आप उसको कैसे टैकल करोगे, तो वो आप इससे आप कर सकते हो। इसके अलावा जो इसका बेसिक रिसोर्स, मैंने कोई भी कोचिंग मटेरियल ले लिया था, उसमें जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट का 54-56 पेजेस का है, आप उसको थीम वाइज बांटने की कोशिश करिए। जितने भी डिजास्टर आपके दिमाग में आ रहे हैं जो आ सकता है, आप हर डिजास्टर के बारे में थोड़ा बहुत एक पेज का डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा जो बेसिक टर्म्स हैं उनका डिफरेंस, जैसे कि डिजास्टर क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के पीछे बेसिक डिफरेंस क्या है, वो सब आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, एंड दैट वुड अगेन ऐड टू योर चांसेस। इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका बॉर्डर मैनेजमेंट पे आता है, तीसरा आपका इंटरनल सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर आ सकता है, और इसके बाद हो गया आपका जो की टर्म्स हैं, जैसे कि टेररिज्म क्या हो गया, नक्सलिज्म क्या हो गया, एक्सट्रीमिज्म क्या हो गया, इंसर्जेंसी क्या हो गई। तो ये सब चीज़ों के बारे में जनरली पूछते हैं। अब मैंने इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है मैप के थ्रू। तो मैंने एक मैप बना लिया अपना इंडिया का, मान लो ऐसे। अब इसमें मैंने पहले ही बता दिया, अब कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए, पर्टिकुलरली बॉर्डर मैनेजमेंट या फिर इन टर्म से कोई भी रिलेटेड हो, तो आप एक मैप बना के दिखा दीजिए। यहाँ पे आपका साइबर पायरेसी का इशू है, पर्टिकुलरली इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रेड सी का क्राइसिस हुआ इस साल, तो वो मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। टेररिज्म के हॉटस्पॉट्स हो गए, यहाँ पे आपका सेपरेटिज्म का इशू आ गया, या यहाँ पे खालिस्तानी का यहाँ पे
या मणिपुर क्राइसिस वगैरह हो गया। फिर आपका यहाँ पे कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आ गए, साइबर टेररिज्म हो गया आपके, चाहे मुंबई पे अटैक हो या कुडमकुलम पावर प्लांट के ऊपर जो अटैक हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो आप मैप बना दो इन सब क्वेश्चंस में और जो भी चीज़ें वो दिखा दो। बॉर्डर मैनेजमेंट पे आपके जो भी CAPFs हैं आपके सारे, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि BSF कहाँ पे लगी हुई है, SSB कहाँ लगी हुई है, CRPF का क्या रोल है। नक्सलिज्म का भी हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने बोला है कि वील फिनिश इट बाय 2025। तो जो दंडकन्या रीजन हो गया आपका यहाँ पे, उधर क्या क्या है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में कम हो गया है। जम्मू कश्मीर पे इस साल क्वेश्चन आया था, तो मैंने जैसे जम्मू कश्मीर में पहले प्रिपेयर करके गया था मैं कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी का कोट लिखूंगा, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। तो लकीली वो मेरे लिए हिट कर गया। वैसे ही आप नक्सलिज्म का जल जंगल जमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ के जाइए, तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप पहले से ही उसको कर पाएंगे। इसमें भी आप कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट का नाम यूज़ कर सकते हैं, जैसे MK नारायण सर हो गए या फिर आपका अजीत डोवल हो गए। तो ये बड़े अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो दिस इज हाउ यू कुड परहैप्स प्रिपेयर देम। फिर अगर आपका नक्सलिज्म पे आ गया तो कहाँ नक्सलवाड़ी में शुरू हुआ, चारू मजुमदार कौन था, फिर कैसे ग्रेहाउंड वगैरह बनाया गया, या छत्तीसगढ़ पुलिस ने कैसे किया। इंसर्जेंसी पे क्वेश्चन आया है। अब मणिपुर का इस साल लास्ट ईयर वो हुआ है क्राइसिस, एक वो पॉइंट हो जाता है। अग्रीमेंट्स हुए न्यूज़ में नॉर्थ ईस्ट के रिलेटेड, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी शायद अरुणाचल प्रदेश और किसी के बीच में हुआ था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सब टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नॉवल टेक्नोलॉजीज़ जो अब इंटरनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए हुआ है, चाहे ड्रोन कैप्चर टेक्नोलॉजी हो गया आपका, या फिर जो आपका स्मार्ट फेंसिंग हो गया जो CIBMS के अंतर्गत बनाया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हो गई, जैसे एक तो है मधुकर गुप्ता कमेटी हो गई बॉर्डर मैनेजमेंट पे। तो ऐसे 4-5 कमिटीज़ हैं, इनके आपको नाम याद रखने हैं, लेकिन अपने को इतना ही करना है, इससे ज़्यादा वो बाहर जनरली पूछते नहीं हैं। तो आप अपना अगर स्मार्टली खेलेंगे तो पहले से नोट्स बना लेंगे और अच्छे वैल्यूडेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का हो गया। अब फिर से वही हर एक पार्ट में कैसे वैल्यूडेशन करना है। अगर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो मेक श्योर टू मेक ग्राफ्स, जितने ग्राफ्स बनाएंगे उतने नंबर बढ़ेंगे। अब ग्राफ कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ग्राफ के 2-3 फायदे हैं। एक तो ये बात, जैसे मुझे भी बहुत डेटा पता नहीं है, लेकिन मेरे को ट्रेंड पता है। जैसे EV का क्वेश्चन आया था इस बार, या किसी का भी आया, तो मैंने तो बस ये बना दिया। अब यहाँ पे आप बोलो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा बहुत बना दो यहाँ पे, लेकिन उससे आप अपना जो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसको इससे मास्क कर सकते हो। तो कभी कभी स्मार्टली खेलो, लेकिन ये नहीं कि भाई अब उल्टा ही बना दिया एकदम, तो वो उनको पता चल जाएगा। तो आप इंश्योर करिएगा कि कम से कम ट्रेंड सही हो, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट का। अब सबको पता है कि 4.5-5 इसी परसेंटेज के बीच में भी है। अब आपने 15% बना दिया तब तो वो समझ जाएंगे कि आपको भी नहीं पता। वही चीज़ है आपकी फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्या है। अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता था, लेकिन मेरे को पता था कि थोड़ा डिक्रीज हुआ है लास्ट में, और पहले बहुत हुआ था। $600 बिलियन कुछ था और 450 हो गया। तो अपने $1000 बिलियन दिखा दिया तो जान ही जाएंगे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आप स्मार्टली खेल सकते हैं ग्राफ्स के थ्रू। तो मैं ग्राफ्स बहुत बनाता था जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आते थे। सेकंड, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते थे, अगेन ड्रॉ मैप्स। जितने मैप्स बनाएंगे, इस साल भी जैसे एक क्वेश्चन आया था रामसर साइट कितने हैं। अब अच्छा, अब इन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि ये फैक्चुअल चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंटली पूछ रहे हैं। अब रामसर साइट सब अपना प्रीलिम से पढ़ के जाते हैं, मेंस पे कोई पढ़ के नहीं जाता। तो इंश्योर दैट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप पढ़ के ज़रूर जाएं। अच्छा, इन्वायरमेंट में एक बहुत अच्छा वैल्यूडेशन होता है, एंड दे आर एक्ट्स, जो लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं। सो वेन एवर यू आर राइटिंग, जो 4-5 ब्रॉड एक्ट्स हैं, जैसे एयर एक्ट हो गया, या वाटर एक्ट हो गया, या फिर आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ के जाइए कम से कम इन एक्ट्स के बारे में, जो हम प्रीलिम से पढ़ते हैं लेकिन मेंस पे इग्नोर कर देते हैं, एंड देन वी कैन नॉट ऐड वैल्यू टू आवर आंसर्स। तो कभी भी आप लिखें तो ये जो बेयर एक्ट्स हैं उनका पर नाम लिख दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा बस उसके कंसर्निंग कुछ लिख दीजिएगा, कुछ उल्टा मत लिखिएगा तो भी काम चल जाता है। सो ट्राई टू एक्ट स्मार्ट इन द एनवायरमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक क्वेश्चंस में अगेन फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने AI में आपको बना के दिखाया कि मैं कैसे डायग्राम बना के आया था, वैसे यू कुड डू समथिंग एल्स। लेकिन एक वो भी चीज़ मत करिए जो मेरे इस बार कुछ दोस्त है जो दे रहे थे करके आए, वो चंद्रयान 2 का पूरा मून और क्रेटर और सब कुछ उसमें बना के आ गए, विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। सो आप अपना ये देख के रखिए कि डायग्राम कौन सा बना रहे हैं, और क्लास 2 का ड्राइंग नहीं करना है वहाँ बैठ के। फिर अपना इंटरनल सिक्योरिटी, अगेन मैप, इसमें तो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इंडिया का मैप बनाइए, जितने भी पर्टिकुलर स्पॉट्स हैं उनका आप बना के देखिए, एंड यू विल बी डन विद दैट। सो दिस वाज योर बेसिक GS3। और इसमें मेरे ख्याल से आप फैक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, फैक्ट्स एंड डेटा। जितने ज़्यादा फैक्ट्स एंड डेटा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा एग्जामिनर को लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, तो बस वही दिखाना है वहाँ पे। अब ज़्यादा रिटोरिक वगैरह मत यूज़ करिए इन्वायरमेंट में,
focus on keywords, focus on data and facts, focus on government schemes and all, and focus on जो करंट में ज़्यादा है, डायनेमिक पेपर ही बहुत ज़्यादा है, तो इंश्योर कि आप वो डायनेमिसिटी दिखा पाएँ। जैसे इस बार MSME का क्वेश्चन आया था, तो देश बिल अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, उसका जो टारगेट है $2 ट्रिलियन का, वो आप कोट कर सकते हैं कि भाई अगर हमने ये सब किया तो हम जो हमारा FTP का गोल है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, हम वो अचीव कर सकते हैं। डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओनली टू SDGs, और SDG भी अगर आप लिखें पेपर 2 या पेपर 3 या पेपर 1 में, लिमिटेड टू ओनली 3 and 4 क्वेश्चंस। उसके बाद आप अपना जो बेसिक और भी चीज़ें हैं, जो पॉलिसीज गवर्नमेंट, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें उन्होंने टारगेट किया 8% तक रिड्यूस करेंगे, या MSME का टारगेट हो गया हमारा, जो विकसित भारत संकल्प है हमारा, कि क्या हमें करना है उसके लिए, पंचप्रण प्रिंसिपल हो गया, तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। पंचामृत हो गया, तो या NDC के टारगेट्स हो गए आपके। जैसे लास्ट टाइम अभी याद है एक क्वेश्चन आया था उसके ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, या बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ फूड सिक्योरिटी कनेक्शन, तो मैंने कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यूज़ किया था उसमें टू एंड माई आंसर, कि हमें 30x30 वाला इसमें एक्सटेंड करना चाहिए टू इंश्योर कि सबका सही रहे। फिर मैं इडियम्स वगैरह यूज़ कर सकता था, सबका साथ सबका विकास। So these type of things are very useful in adding richness to your answers. Last आता है GS4 का। अब इसके दो पार्ट्स हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो आपको सेक्शन ए ही पढ़ना है, सेक्शन बी बस अप्लाई करना है। तो मैंने कभी सेक्शन बी अलग से नहीं पढ़ा, कोई पढ़ाता भी तो मत पढ़िएगा उनसे। सेक्शन ए ही है, सेक्शन ए एक बार आपने पढ़ लिया, उसको अप्लाई का कैसे आपका मोटिव है या कैसे करना है, हम वो एक बार देख लेंगे। अब सेक्शन ए में सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस ही है सिर्फ। अब उन्होंने वो सारी क्वालिटीज़ बता के रखी हैं जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिविटी हो, चाहे वो आपका इंटेग्रिटी वगैरह हो। तो मैंने क्या किया था, अब इसमें मैं आपको पहले बेसिक अपने नोट्स बता देता हूँ, और फिर मैंने उसको स्मार्टली कैसे फाइनली किया वो भी बता दूंगा। सिलेबस में इसके लिए मैंने अतुल गर्ग सर के नोट्स यूज़ किए थे, उनको जो टेलीग्राम पे मिल जाएगा काफ़ी कुछ। इसके अलावा ऋषिकेश रेड्डी सर हैं, उनकी शायद AR78 या कुछ आई थी, उन्होंने सारा कंपाइलेशन करके रखा है। श्रुति शर्मा मैम के नोट्स हो गए। तो इन तीनों का मैंने किया, और फिर खुद से भी मैंने बनाना थोड़े बहुत नोट्स बनाए एथिक्स में, क्योंकि मुझे लगा था इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट टाइम मेरा 101 था, इस बार मेरा स्कोर 118 है, तो उसमें 17 मार्क इसलिए बढ़े क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। तो ये कुछ 3 चीज़ें मैंने अपना सिलेबस का जो बेसिक पार्ट्स हैं उसमें यूज़ किया, और इन्हीं को बार बार पढ़ा। अब वैल्यू एडिशन वगैरह कहाँ से किया, एक तो टॉपर कॉपीज़। मैंने बाकियों में इतना टॉपर कॉपी का इन्फोसिस नहीं किया, लेकिन एथिक्स में मैं बहुत ज़्यादा टॉपर कॉपी का इन्फोसिस कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर्स। एथिक्स इतना ज़्यादा ओपन एंडेड है कि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। तो आप बस ये देख सकते हैं कि किसी और के लिए क्या वर्क किया है, और वो वर्क क्या किया है, दैट वुड ओनली बी गेज जब आप टॉपर कॉपीज देखें। तो रीड एज मेनी टॉपर कॉपीज एज पॉसिबल। आप जितनी टॉपर कॉपीज पढ़ेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखना है। तीसरा जो है बेटर इंडिया फाउंडेशन, अगेन ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है पर्टिकुलरली इसके लिए, सो यू कुड यूज दिस एज वेल। तो बेटर इंडिया फाउंडेशन, टॉपर कॉपीज, और जो सिलेबस के ये जो 3 मैंने आपको टॉपर्स के नाम बताए वो आप उनको देख सकते हैं, और वो मोर देन सफिशिएंट है टू डिसाइफर दिस पर्टिकुलर पेपर। अब ये तो आपने देख लिया कि बेसिक नोट्स क्या है, लेकिन दिस इज यूजलेस अनलेस यू अलाइन इट विद द डिमांड ऑफ द पेपर। तो मैंने क्या किया, अब इन्होंने कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज बता के रखी हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी। अब मैं ऑब्जेक्टिविटी मान लीजिए मैंने एक पेज में लिखा, अब मैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था जो एग्जाम में रिक्वायर्ड है। पहला आएगा डेफिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिविटी को सिर्फ 2 लाइन में डिफाइन करना आना चाहिए। सेकंड है एग्जाम्पल, सो यू शुड बी नोइंग हाउ टू सब्सटैंशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड तीसरा है आपका यूनिक कंटेंट। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस यूनिक कंटेंट, दिस कुड बी अ कोटेशन। एग्जाम्पल्स यहाँ पे सिविल सर्वेंट का ट्राई करिए लिखने का, जितना सिविल सर्वेंट्स का आप लिखेंगे उतना बेटर है, बट यू कुड ऑलवेज यूज अदर इंटरनेशनल हिस्टोरिकल फिगर्स, बट वो आपका सेकेंडरी होना चाहिए अनलेस सो आस्क्ड। प्राइमरी शुड बी योर सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल्स। यूनिक कंटेंट में तो कोटेशन यूज हो सकता है, दूसरा हो सकता है एथिकल पर्सपेक्टिव्स, तीसरा है फेबल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं पंचतंत्र की बुक के बारे में लिख के आया कि पंचतंत्र में ये लिखा है, या महाभारत हो गया, रामायण हो गए। तो ये जो आपकी जो फोक स्टोरीज आप बचपन में पढ़ते हैं, पंचतंत्र में भी काफ़ी स्टोरीज अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं, तो आप उन सब का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हो गया आपका कुछ इडियम्स, जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, प्रोबिटी का क्वेश्चन आता है मान लीजिए,
तो उसमें मैंने एक कंक्लूजन ऑलरेडी सेट करके रखा था और एक यूनिक कंटेंट में आपको एक डायग्राम्स भी हो गए। तो आपको इसका डेफिनेशन पता है। इसका मैंने एग्जाम्पल यू सगायाम का नाम याद, या पी एस अप्पू का नाम, दो नाम्स थे जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत दिखा था, तो मैंने उन दोनों के नाम याद करके रखे। यूनिक कंटेंट में मैंने इसका डायग्राम रखा था याद, रेक्टिट्यूड, ऑनेस्टी, अपराइटनेस। ये हो गया आपका 3 प्रोबेबिलिटी क्वालिटीज। ये वन ऑफ द डायग्राम्स व्हिच आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक व्हेनेवर अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आस्क्ड था। प्लस आपका एक कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये लिखता था कि विद सत्यमेव जयते एज आर नेशनल मोटो, प्रोबेबिलिटी बिकम्स अ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव फॉर अ गुड सिविल सर्वेंट। तो ये मैंने प्रोबेबिलिटी का ऑटोमेटिकली कंक्लूजन रेडी करके रखा था ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो मैं इसी से कंक्लूड कर पाऊँ। तो वैसे ही आपको सारे कीवर्ड्स के लिए करना है, ये 7-8 कीवर्ड मेंशन्ड है, आपको सारे के सारे मेंशन करने हैं। इसमें 2 पार्ट्स और होते हैं सेक्शन ए में। एक तो आपके थिंकर्स हैं, वेस्टर्न, तो एक इसमें आप अच्छा ही कर सकते हैं। एक यूट्यूब पर चैनल आता है क्रैश कोर्स फिलॉसफी या क्रैश कोर्स एथिक्स, उसमें उन्होंने ये काफ़ी सारे जो आपके कीवर्ड्स वगैरह हैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। ये काफ़ी अच्छा यूट्यूब का चैनल है, आप उसको देख सकते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ बेसिक सेक्शन ए के मेरे नोट्स थे या सेक्शन ए के मेरे जो सिलेबस के रिसोर्सेज थे। इसके अलावा GS2 का जो गवर्नेंस का पार्ट है और GS4 का ये वाला पार्ट बहुत इंटरलिंक्ड है, तो आप अलग से मत पढ़िए इसको, टाइम वेस्ट होगा आपका। आप पहले GS2 का गवर्नेंस का पार्ट खत्म करिए, उसके बाद आप एथिक्स का ये बेसिक सिलेबस खत्म करिए, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और प्लस कंटिन्यूटी भी मेंटेन होगी। तो आप इनको अलग अलग चैप्टर्स की तरह मत ट्रीट करिएगा प्लीज। तो ये होगा आपका सेक्शन ए का पार्ट। सेक्शन बी का पार्ट जो है केस स्टडीज का। अब 6 केस स्टडीज आती हैं और 6 की 6 डिफरेंट होनी चाहिए आपकी। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं केस स्टडीज के। पहला पार्ट होता है इंट्रो, दूसरा होता है बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। तो अब मैं आपको एक पर्टिकुलर केस स्टडी का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करता था सेक्शन ए का यूज करते हुए। अब जैसे करप्शन पे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि कोई केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी पढ़ने का तरीका ये है, केस स्टडी हमेशा आप बाद में पढ़िए, पहले उसके क्वेश्चन देखिए। 1 2 3 4 अगर क्वेश्चन है तो वंस रीड द क्वेश्चन। एक बार आपका क्वेश्चन अच्छे से हो गया, देन यू स्टार्ट रीडिंग द केस स्टडी। और जब केस स्टडी पढ़ते थोड़ा स्मार्टली एक्ट करिए। जनरली क्या होता है कि हम एक बार केस स्टडी पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ लिया, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, तब थोड़ा और ध्यान से पढ़ा, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो उसमें आपके 10 मिनट चले गए। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं, उसी समय आइडेंटिफाई कर लीजिए स्टेक होल्डर, तो उसको ऐसे सर्कल कर लीजिए, उसके सामने एस लिख दीजिए बड़ा सा। तो जब आप दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूर से देख लेंगे। एथिकल डिलेमा है, मान लीजिए कुछ पूछा एग्जाम्पल में, तो आप इसको अंडरलाइन करके ED लिख दीजिए। नाउ दिस बिकम्स अ डायरेक्ट फॉर्डर फॉर योर पॉइंट। तो ऐसे आप स्मार्टली अपनी केस स्टडी को एक ही बार में पढ़ के आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन एथिक्स का पेपर टाइम मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू दी स्मार्ट थिंग्स, आपका पेपर मोस्ट प्रॉब्ली खत्म नहीं होगा। एंड वंस यू स्टार्ट लीविंग क्वेश्चंस इन एथिक्स, योर मार्क्स ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली ड्रॉप डाउन। तो जैसे ED हो गया, S हो गया आपका, तो ये आपके स्टेक होल्डर्स, डायग्राम, एथिकल डिलेमास हो गए आपका। फिर हो गया आपका EI, जो एथिकल इश्यूज हैं केस स्टडी में, कि किसी ने इसको कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया, तो आपका वो EI हो गया। तो ऐसे करके आप अपने इडियम्स या अब्रिविएशंस बना लीजिए और जब भी केस स्टडी पढ़े उधर ही मार्क कर लीजिए ये सब चीज़ें। तो आपको दूसरी बार जब करेंगे बस देखने की जरूरत पड़ेगी आपको। इंट्रो में क्या करता था, मैं हमेशा किसी कोट से शुरू करता था। तो जैसे कि आपका करप्शन पे आया, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कोट है कि करप्शन इज अ टर्माइट विच हॉलोज द नेशन फ्रॉम विद इन। तो ये आपका एक कोट हो गया, इससे आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप एक बेसिक समरी दे दीजिए यहाँ पे कि द केस स्टडी डिस्क्राइब्स या टॉक्स अबाउट या डिस्कसेस, ऐसे करके आपने एक बेसिक चीज बता दी कि इस केस स्टडी में क्या है। फिर आता है मेजर पार्ट ट्रांजिशन का। अब ट्रांजिशन में सब लोग क्या करते हैं, स्टेक होल्डर बना के आ जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल वो। तो इसमें मैंने 2-2-2 करके कर रहा था, 2-2-1। एक केस स्टडी में मैं कुछ नहीं बनाता था, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। आप 6 केस स्टडी को इक्वली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे इट विल टेक मोर देन 1 hour 45 minutes। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए 1 hour 40 minutes एंड 1 hour 20 minutes। तो आपको 1 घंटा 40 मिनट में किसी भी हालत में अपनी केस स्टडी खत्म करनी ही करनी है। तो आपको एक केस स्टडी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द पेपर। अब मैं क्या करता था, मैं बीच का किसी को कॉम्प्रोमाइज कर लेता था, क्योंकि जब एग्जामिनर पढ़ता है तो बीच पे जब होता है तो वो जनरली इतना ध्यान नहीं देता है जितना वो स्टार्टिंग या एंड में देता है। तो ट्राई कि मैं 3rd या 4th केस स्टडी जो होती थी उसमें मैं ये कुछ नहीं, ट्रांजिशन नहीं करता था, मैं सीधे बॉडी पे आ जाता था
सेकंड, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? अगर मान लो सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ है और किसी केस स्टडी में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हो, तो जो 2 केस स्टडी में है इसमें आप बहुत इलेबोरेट करो, बिकॉज यू डोंट हैव सो मच कंटेंट टू राइट अबाउट। अगर सब पार्ट्स बहुत ज्यादा है तो आप डायरेक्टली इसको हटा के सीधे बॉडी से शुरू कर सकते हो। यू विल बी एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एज वेल, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो वहां आपको बैलेंस करना पड़ेगा, वो आपकी स्मार्टनेस पे रिलाई करेगा। फिर आपने कोड दिया, आपने बेसिक इंट्रो दिया, अब आपका ट्रांजिशन में क्या क्या यूज कर सकते हो? एक तो स्टेक होल्डर, ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन आपके स्टेक होल्डर के बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन में मैं थोड़ा इनोवेशन करता था कि इधर एथिकल प्रमाइस लिख देता था बड़ा करके। अच्छा, अब स्टेक होल्डर किस क्वेश्चन में बनाना है? तो अगर कभी भी कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो कि गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाया है या कुछ ऐसा किया है, तो वहां आपका स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो उन क्वेश्चन से अपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर लो। बाकी फिर कोई अगर डिस्क्रिमिनेशन या कोई पर्सनल का हो तो उसमें आप तो सरकार में नहीं हो तो स्टेक होल्डर को कोई फायदा नहीं है, तो आप पर्सनल एथिकल प्रमाइस लिख सकते हो। When it is talking about you as an individual, not as a SP, not as a DM, कुछ स्टेट SP में they'll make you SP और फिर आप बताओ, तो आप स्टेक होल्डर बनाओ। नहीं तो अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए तो यू ड्रॉ द एथिकल प्रमाइस। अब एथिकल प्रमाइस में भी आप बस 2-3 पॉइंट्स बता दो। एक मैं यूनिक इसमें करता था, एक ग्राफ बना देता था मैं। अब ग्राफ में क्या करता था, मैं यहाँ पे लिख देता था एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व इन द केस, एंड यहाँ पे मैं लिख देता था प्रायोरिटी ऑर्डर। तो बड़े में मैंने बना दिया कि इंटेग्रिटी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में होगा, सेकंड मेरा रीचिंग लास्ट माइल। तो ऐसे करके मैं चीजें अपना उसको कर लेता था। 2 क्वेश्चन में स्टेक होल्डर बनाया, 2 क्वेश्चन में आपका एक में एथिकल प्रमाइस नॉर्मल लिख दिया, एक में ऐसा करके ग्राफ बना दिया, तीसरे में लिखता था स्टेक होल्डर और इंटरेस्ट उनके। तो ऐसे करके 5 यूनिक मेरे अलग अलग चीजें हो गई। और ट्राई टू मेक इट डिफरेंट, तभी आप डिफरेंट बना पाओगे, बिकॉज इफ यू मेक इट सेम अगेन इट वुड बी कॉम्प्रोमाइज। बॉडी जो बॉडी है आपकी, उसको जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम ऑर्डर में लिखिए, डोंट रीअरेंज इट। जो ऑर्डर पूछा गया है आंसर इट इन द सेम ऑर्डर। प्लस आपका जो बॉडी में है उसमें आपकी जो सेक्शन ए का जो सिलेबस के की टर्म्स हैं दैट वुड बी यूटिलाइज्ड अ लॉट। तो अगर आपको दिखाना है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कास्ट सिस्टम के बेसिस पे मान लीजिए डिस्क्रिमिनेशन है, तो आप शो कर सकते हैं कि लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन पेपर, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन पीपल। नाउ ऑब्जेक्टिविटी इज अ सिलेबस का टर्म। हमेशा शुरू करिए कैरेक्टर के क्वेश्चन उस पर जो इश्यूज हैं, और बाद में आप आइए पॉलिटिकल या गवर्नेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज या स्टैट्यूटरी इश्यूज कि भाई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी। एथिक्स में प्राइमरी शुड बी गिवन टू कैरेक्टर डेवलपमेंट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो आप इश्यूज को भी वैसे पॉइंट आउट करिए, पहले कैरेक्टर के इश्यूज क्या क्या है, सोसाइटी के इश्यूज क्या क्या है, फिर आप गवर्नेंस पॉलिटी और इन सब चीज़ों पे, दैट शुड बी योर लास्ट। कंक्लूजन हमेशा आप किसी थिंकर से करिए जस्ट टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर। जैसे करप्शन का है तो मैं हमेशा इसको अर्थशास्त्र के कौटिल्य से यूज करता था। तो कौटिल्य ने एक्सटेंसिवली करप्शन के बारे में डिस्कशन किया है। अगर करेज का क्वेश्चन आया तो मैं सोक्रेटिस से यूज करता था। अगर आपका नॉन वायलेंस के ऊपर आया तो गांधी जी आ गए आपके। अगर आपका इंटेग्रिटी के ऊपर आया तो मैं भगत सिंह जी का यूज करता था। तो ऐसे यूनिक चीजों से आप अपना कंक्लूजन ट्राई करने की कोशिश किया करिए। और प्लीज प्रैक्टिस 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 एथिक्स का पार्ट, कम से कम 6 से 7 टेस्ट लिख लीजिएगा, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ प्रॉपर्ली हो पाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आई हैव हर्ड अबाउट दे आर मिसिंग 1 to 2 आंसर्स, चाहे वो 10 मार्कर हो या कॉम्प्रोमाइज हो जाता है एक 15 मार्कर आपका। तो ये बेसिकली चारों जीएस पेपर्स का एक बेसिक वो आइडिया था। इसके अलावा एक और हम चीज अब देख लेते हैं, वो है एसे का। तो यार एसे बहुत ही डेंजरस सब्जेक्ट है। इस बार भी बहुत लोग लिस्ट में बहुत पीछे रह गए हैं बिकॉज ऑफ द ओनली फैक्ट कि उनका जीएस में 420 स्कोर पहुंच रहा है, लेकिन ऐसे में दे कुड ओनली मस्टर 90, 85 एंड ऑल। सो ऐसे अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है फॉर सिलेक्शन और फॉर रिजेक्शन। तो लास्ट टाइम मेरा स्कोर 101 था, तो उसमें मैंने एक इंटरप्रिटेशन की गलती कर दी थी। इस बार मेरा स्कोर 129 है, विच इज़ डिसेंट या अच्छा ही लूँगा मैं इस बार के हिसाब से। तो ऐसे में 3 पार्ट्स होते हैं। अब मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है। सो आई ऑलवेज स्ट्रगल्ड विथ राइटिंग गुड इंग्लिश, सो आई नीडेड अ वे टू कम आउट ऑफ दिस, and what I found was you could substitute your bad English with proper structuring of your essay। तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता था। अब इसके 3 पार्ट मुझे लगता है ऐसे में है जिसके बेसिस पे मार्क्स देते हैं। फर्स्ट इज योर फ्लो या ऑर्गेनिक कोहेरेंस, सेकंड आपका इंटरप्रिटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर दिया ऐसे का तो आप सीरियस, आपका नंबरिंग शुरू ही 90 पे होगी। सो इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 आप चीज़ें कर सकते हैं। मैं तो ये किया था लास्ट टाइम कि मैंने चैट जीपीटी का अगेन काफ़ी यूज़ किया। जितने भी पास्ट 5-6 ईयर्स में फिलोसफिकल टॉपिक्स आए हैं ऑफ यूपीएससी,
दैट आई मतलब चैट जीपीटी मैंने उससे देख लिया और उसका मीनिंग क्या है, उससे मेरे को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ईजी आया. सेकेंड, हर ऐसे का हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है. सो आई ऑलवेज यूज टू रीड द इंग्लिश टॉपिक followed by reading the Hindi topic, just to make sure that my interpretation is on point, because otherwise it wouldn't make any sense. तीसरा है कंटेंट. काफी लोग बोलते हैं कि बहुत कम कंटेंट लिखोगे आप जीएस में तो काम चल जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो ट्रू. इफ योर इंग्लिश इज वेरी गुड, कंटेंट विल नॉट मैटर दैट लॉट. बट क्योंकि मेरा इंग्लिश वॉज वीक, आई नीडेड टू सब्सटीट्यूट इट विद कंटेंट, सो आई यूज कंटेंट एज माई मास्क फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. तो इन 3 पार्ट्स में आपका ऐसे डिवाइडेड है, और इन्हीं 3 पार्ट्स में आपको आंसर नंबर मिलते हैं. अब फ्लो और या ऑर्गेनिक कोहेरेंस कैसे बनाना है, इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी. सो द बेटर द ब्रेनस्टॉर्मिंग, द मोर ऑर्गेनिक योर कंटेंट वुड बी. मैंने इसको क्या क्वेश्चन, अब 2 ऐसे आते थे. एक ऐसे तो मैं सिंगुलर फ्लो में लिखता था, एंड द सेकंड ऐसे आई यूज्ड टू राइट हेडिंग्स. जहां फ्लो में मैं लिखता था, देयर आई यूज्ड टू कीप इट इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. अच्छा, इन बोथ द एसेज व्हेनेवर 2 पार्ट्स में, एक तो जीएस के टॉपिक्स आ गए जैसे इस साल वापस शुरू हो गया ट्रेंड, एक है फिलोसफिकल. In your GS based topic, you could again use the pestle principle, and that would work. मेरे लिए इस बार वर्क किया. जो सोसाइटी मैंने लिखा था, सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी, तो जस्टिस का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल डायमेंशन मैंने खोल के अपना ऐसे लिखा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू फिलोसफिकल, इट इज अ ब्लंडर इफ यू राइट द पेस्टल प्रिंसिपल, या उसको फॉर्मेट करके आप आर्गुमेंट जनरेट कर रहे हो. इट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन W's, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु. ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए. इन बेसिस पे आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए. जब आप पेस्टल प्रिंसिपल पे जीएस का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आप अपना फिलोसफिकल एसेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं. एक बार आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, और मैं ये सजेस्ट करूंगा दोनों एसेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग अलग अलग करिए. पहले एक बार आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, एंड ट्राई टू कीप बोथ द एसेस सेपरेट. एक का कंटेंट दूसरे के कंटेंट में नहीं मिलाना है, और एक का फ्लो दूसरे के फ्लो में भी नहीं मिलाना है. सो ट्राई टू कीप इट डिफरेंट. जितना डिफरेंट होगा उतने नंबर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है. इंटरप्रिटेशन की मैंने बात कर ली, फ्लो, ऑर्गेनिक में. अब इसमें मैं शुरू करता था एनेक्डोट से, देन आई यूज्ड टू ट्रांजिट. अब ट्रांजिट के बाद आजकल बहुत लोग क्या कर रहे हैं, दे डायरेक्टली राइट इट लाइक अ जीएस बेस्ड आंसर, कि जैसे नॉट ऑल हू वंडर आर लॉस्ट, तो लोग वंडर इज डिफाइंड एज दिस दिस दिस. डोंट एवर डू दिस. आपका ये जीएस का आंसर नहीं है. डोंट ट्राई टू जस्ट एक्सप्लेन योर कीवर्ड. मैंने जैसे उसको क्या किया इस बार, कि मैंने बोला कि इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल looks for eudaimonia. ये Aristotle concept है, that is happiness. But since every individual is different, they may not be following the same path. That's why people often wander from their path to choose to suit their temperament and their abilities. अब लेकिन not all are able to succeed in this. Why is it so? फिर मैंने spatio-temporal analysis दिया, and then I gave reasons for it. So try to use this type of format in your answering. Don't ever just define the keywords that are asked in the question. कंटेंट आपका इसमें दोनों कंटेंट तो आप सेपरेट करके रखिए. जैसे मैंने फर्स्ट ऐसे में अगर इन्वायरमेंट का कोई कंटेंट यूज किया है, आई यूज टू मेक श्योर कि इन्वायरमेंट सेकंड वाले पार्ट में रिपीट नहीं होगा. सेकेंडली, आई यूज टू राइट अ लॉट ऑफ बुक्स. जैसे युवाल नोआ हरारी का सेपियंस हो गया, फिर लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस हो गया, फिर आपका जेम्स क्लियर का एटॉमिक हैबिट्स हो गए. तो दीज वर द सम ऑफ द बुक्स दैट आई, मैंने फिर से ये बुक्स पढ़े नहीं क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने चैट जीपीटी का यूज किया अगेन. तो अगर आप टाइप करिए 1500 वर्ड्स में सेपियंस का समरी दे दो, वो पूरी समरी दे देगा आपको. सो दिस इज हाउ यू कुड स्मार्टली यूज दीज टेक्नोलॉजीज फॉर योर एडवांटेज. तो बुक्स काफ़ी यूज़ करिए, इससे स्कॉलरली टच आता है और लगता है कि आज सामने वाला थोड़ा वो है. तो ये कंटेंट का आपका पार्ट हो गया. सेकेंडली, 2 डायमेंशंस हमेशा इंक्लूड करने की कोशिश करिए, एक तो गवर्नेंस का और एक कॉन्स्टिट्यूशन का. फर्स्ट ऐसे में अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट इंक्लूड किया है तो डोंट इंक्लूड गवर्नेंस का पार्ट, और वैसे ही सेम में सेकंड में एक में गवर्नेंस का यूज़ कर सकते हैं. फिर थोड़ा यूनिक कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करिए, यूनिक एग्जाम्पल जनरेट करने की कोशिश करिए. उसके लिए बेस्ट सोर्स है आपका टेड टॉक्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस. ये बेसिकली आपको कंटेंट तो देंगे यूनिक. सेकेंड इनका क्या है, ये कोई भी टॉपिक को 15 मिनट्स में डिस्कस करते हैं. सो दे शो हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट शुड बी. वही लाइफ साइकिल आपको अपने एसेज में भी यूज करना है. सो दिस इज हाउ यू कुड ट्राई एंड एसेज को राइट कर सकते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने सोच लिया था कि ऐसे में नंबर कुछ भी हो जाए कम नहीं करने. सो आई रोट अ लॉट ऑफ एसेज. आई रोट ऑलमोस्ट 25 FLTs फॉर द पास्ट 1.5 years. तो वो 50 ऐसे काफ़ी काम आए.
और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम आता है जैसे फ्राइडे को आपका ऐसे का पेपर होगा सुबह 8 बजे, सो ट्राई एंड राइट एन ऐसे थर्सडे नाइट को 3 घंटा, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने दोनों बार ये ब्रेनस्टॉर्म किया रात में, उससे इनर्शिया जो होता है लिखने का वो नहीं टूटेगा आपका। सो दिस इज हाउ यू कुड प्रैक्टिस योर एसेस। तो ये बेसिक GS 1 2 3 4 और ऐसे की स्ट्रैटेजी होगी। नाउ अब ये आपका एक बार बेसिक नॉलेज हो गया, नाउ कम्स द चैलेंजिंग पार्ट, दैट इज द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगेन मेरा काफ़ी ठीक रहा है। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड अराउंड 92, सेकेंड में 103 और थर्ड में आई एम एक्सपेक्टिंग अ स्कोर ऑफ 120। अभी तक आया नहीं है पेपर बिकॉज आई हैड ऑल्सो फिल्ड अप फॉर द फॉरेस्ट का प्रीलिम्स, और फॉरेस्ट में मेरा क्लियर हो गया था कट ऑफ, तो मोस्ट प्रॉब्ली नंबर ठीक होंगे, बट दिस इज अ नंबर दैट आई एम समवेयर एक्सपेक्टिंग। अब ±10 तो यूपीएससी में चलता ही रहता है। अब प्रीलिम्स में भी 2 पार्ट्स है सिलेबस का, अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स पूछते हैं विच इज नथिंग मोर देन 25%, एंड देन देयर इज स्टैटिक विच इज ऑलमोस्ट 70%, और 5 to 10% एकदम रैंडम है, वो किसी को नहीं पता कहाँ से पूछ रहे हैं वो लोग, वो हर साल चेंज होता रहता है। तो अगर आप इसको करंट अफेयर्स में, जनरली लोग क्या करते हैं, वो इस रैंडम पार्ट को करंट अफेयर्स में इंक्लूड करते हैं और फिर बोलते हैं कि करंट अफेयर 35% आया है, विच इज नॉट द केस। तो आपको ये दोनों पार्ट्स करने हैं, ये पार्ट नहीं करना है। हर साल वो कुछ नया पूछेंगे, अगर आप उसके पीछे भागने लगे तो आपका हर साल फिर दोबारा प्रीलिम देने की तैयारी का शुरू करना पड़ेगा। सो डोंट रन आफ्टर दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज इनकॉन्सिक्वेंशियल because your cutoff is not 150, your cutoff is this time 75, so try and ignore this। इन दोनों चीजों को कैसे करना है हम ये बात करते हैं, ठीक है। तो करंट स्टैटिक का अगर बात करें तो इसमें आपको बेसिक बुक सारी कर लेनी चाहिए। मैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम, ये वो सब है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं। एनवायरमेंट के लिए PMF, NCRTs हो गई आपकी, IR हो गया आपका, ये बेसिक चीजें सभी लोग करते हैं। अब इस पर आप क्या करिए, इसको रिवाइज बहुत बार करिए। अब मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ओवर यूज वर्ड है रिवीजन, क्योंकि सब लोग बोलते हैं रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना है दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी होता है, लेकिन कुछ लोग नोट्स बना के करते हैं, कुछ लोग नोट्स बना के नहीं करते। मैं नोट्स नहीं बनाता था बिकॉज आई फेल्ट कि लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम आर ऑलरेडी नोट्स। अगर आप नोट्स का नोट्स बनाएंगे तो एक और नोट बन जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। तो आप लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को तो एज इट इज़ दोबारा पढ़ते रहिए, और जो बेसिक स्टैटिक पार्ट है कम से कम उसको खत्म करिए, और ज्योग्राफी भी हो जाता है। तो अगेन दिस पर्टिकुलर प्रीलिम्स का पेपर हमने जैसे इन तीनों में डिवाइड किया। नाउ दिस रिक्वायर्स 2 थिंग्स टू क्लियर। एक आपका होता है नॉलेज का पार्ट विच इज बेस्ड अपॉन योर करंट एंड स्टैटिक, एक होता है आपका एग्जाम इंट्यूशन या जिसको गेसिंग कहते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स ही आपका प्रीलिम्स निकालता है। अब नॉलेज बेस पे आपका 25 से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी 20 से 25 क्वेश्चन आपके इससे बेसिस पे होंगे जो एग्जाम इंट्यूशन है। तो नॉलेज की बात करें तो आप मेंस का एक बार आपने पढ़ लिया तो ये आपका डन एंड डस्टेड है। करंट अफेयर्स के लिए बहुत लोग मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी फॉलो करते हैं, मैं कभी नहीं फॉलो किया। मैंने 2 चीज़ें ही इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए किया, एक तो न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर भी मैं क्या करता था, मैं मंडे टू सैटरडे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड, और मेरी इंग्लिश जैसे मैंने पहले बताया इतनी अच्छी थी नहीं, तो मैंने एक्सप्रेस का पेपर आई यूज टू फॉलो, and Express is beautifully written for Monday to Saturday. They write जो editorial page है, explained page आता है आपका, तो these are very important. Sunday को Indian Express बॉलीवुड की न्यूज़ निकालता है, तो मैं उस दिन नहीं पढ़ता था, उस दिन मैं हिंदू पढ़ लेता था। अब हिंदू में भी आपको 4 चीज़ें जनरली संडे के दिन पढ़नी है। एक तो आपका प्रोफाइल्स का पेज आता है, एक आपका FAQ का पेज आता है, एक आपका साइंस का पेज आता है, और एक और कोई आता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस आते हैं। तो आप संडे को हिंदू पढ़िए, और मंडे टू सैटरडे मैं तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर करंट अफेयर्स। इसके अलावा आई यूज्ड टू मंथली ईयरली कंपाइलेशन ऑफ एनी कोचिंग प्लस PIB। So these 3 were the major sources for my prelims examination, particularly the current affairs. And don't run after random। अभी आप कोई पेपर दोगे तो स्पेशली न्यूज़ आ जाता है, अब लोग उसको ही 2-3 बार रटते हैं, तो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। वो इस वाले पार्ट में आएगा, रैंडम वाले में। फिर आपका स्टैटिक का भी हमने बुक्स डिस्कस कर ली जो मेंस की बुक्स हैं। सो ये मेजरली आपके रिसोर्सेज आते हैं, एंड ये काफ़ी है। इंपॉर्टेंट आपका सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज योर एग्जाम इंट्यूशन। देखो यार, एग्जाम इंट्यूशन डेवलप करने के लिए 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज योर PYQs एंड सेकेंड इज योर प्रैक्टिस टेस्ट्स।
PYQs मैंने लास्ट 15 ईयर्स के रिलीजियसली कवर किए। अब इसके दो फायदे हैं। एक तो PYQs के बेसिस पे आपको नॉलेज पता चल जाएगी क्या है। एग्जामिनेशन में बहुत ऐसे टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी फ्रीक्वेंटली हर साल पूछता है और ये PYQs आपको बताता है, बट दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी थिंग है वो है पैटर्न रिकग्निशन। नाउ व्हाट डू मीन पैटर्न रिकग्निशन? यूपीएससी का इस साल लोगों को लग रहा है कि दे हैव चेंज द पैटर्न इंटायरली, बट दैट इज नॉट ट्रू। Many of the tricks that were used in earlier PYQs are used this year as well. तो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक इस बार जैसे मैं नॉक्टर्नल एनिमल का डिस्कस कर रहा था कि देयर वर 3 ऑप्शंस और आपको उसमें से करेक्ट आंसर बताना था। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन था। 3 एनिमल दिए हुए थे और उनका एक बिहेवियर पूछा गया था, हेजहॉग, पैंगोलिन और एक और कोई था, एंड उसमें पूछा गया था हाउ मेनी कर्ल्ड अप। अब इस साल जब सांबर लायन टेल मकाक था और एक और कोई क्वेश्चन था, तो मुझे ये पता था कि सांबर डियर तो नॉक्टर्नल है। अब उसके बाद मैंने बाकी दोनों एलिमिनेट कर दिए। अब बचा 2 ऑप्शन मेरे पास, ओनली 1 एंड ओनली 2। अब मैं कौन सा डिसीजन इसमें लूँ? मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो ब्लाइंडली दोनों में से एक में तुक्का मार देते हैं। लेकिन हियर आई यूज द PYQs। अब जब मैंने PYQ एनालिसिस किया था तब मुझे पता था कि 3 ऑप्शन में उस समय 2 आंसर करेक्ट थे, ओनली 2। तो इस बार जब मैंने डिसीजन लिया ओनली 1 एंड ओनली 2 के बीच में, सो आई टेक ओनली 2 because it had a similar pattern to last year. So this is where your PYQ analysis actually works. जब आप 50-50 पे आ जाते हो तो फिर आपको क्या डिसाइड या क्या टिक मारना है, that should be based upon some evidence, and that best evidence is your PYQ analysis. So this is where PYQs is. अब एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। इस बार भी 4 बुक्स के नाम दिए हुए थे एंड 4 हिस्टोरिकल ऑथर्स के नाम दिए हुए थे। अब मुझे जब मैंने पता एक ही बुक का नाम था, बाकी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन व्हाट आई फाउंड आउट इज कि यूपीएससी स्विच कर देता है 2 क्वेश्चंस के उसको और बाकी 2 करेक्ट रखता है, जैसे 2021 में था। तो मैंने इस बार भी फिर उसमें ओनली 2 मार दिया बिकॉज आई न्यू दैट 1 हैज बीन स्विच, तो बाकी तो जनरली सही होंगे। अगेन मैं डिलेमा में था कि ओनली 1 होगा या ओनली 2 आंसर होगा। सो दिस इज वेयर यू कैन यूज योर PYQ नॉलेज जस्ट टू रीच टू द लास्ट पॉइंट कि 50-50 के बाद क्या करना है। ऑब्वियसली ये सिर्फ ट्रिक्स है, इनिशियली आपका नॉलेज काम आएगा। नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जामिनेशन। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना ही है तो किस बेसिस पे तुक्का मारे, तो ये है। तो ऑलवेज ट्राई कि आपको पता हो आंसर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जो 25-20 क्वेश्चन होते हैं उसमें आप नहीं लगा पाते हो, तो आप कैसे करोगे? अब मैं ये पहले बोला, दिस इज नॉट एन एलिमिनेशन टेक्निक, दिस इज जस्ट अ वे टू गेस कि 50-50 के आने के बाद क्या करोगे आप। 50-50 तक आप नॉलेज के बेसिस पे आओगे और कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो प्लीज प्रीलिम्स का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ये आपका एक हो गया, ये आपका PYQs के बेसिस पे ये 2 टाइप की नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिस टेस्ट में क्या मिलता है? पहला तो ये कि जो आपने PYQ की एनालिसिस की है उसको आप प्रैक्टिस टेस्ट में यूटिलाइज करेंगे, तो उससे आपका जो एग्जाम इंट्यूशन का स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहेंगे। सेकंड आपका प्रैक्टिस टेस्ट में आता है वो है गोल्डन नंबर, ये हाउ मेनी क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट। अब मेरा जो गोल्डन नंबर था वो 84 क्वेश्चंस था। अब मुझे पता था कि मैं 84 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करना ही करना है इफ आई हैव अ चांस टू पास दिस एग्जामिनेशन। व्हाई नॉट 75-70? सिंपली मुझे ये लगा था देयर आर मेनी आंसर्स जो हर साल सब्जेक्टिव होते हैं, और अगर आप 70-75 करोगे तो मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन योर पेपर, जिसका आंसर यूपीएससी कुछ भी दे सकता है। सो इफ यू रिलाई ऑन दैट योर कट ऑफ बिकम्स कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता है, एंड देन इट बिकम्स रिस्की। तो 84 क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये मिनिमम है। अब इससे प्लस कितने करने हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। जैसे जब 2092 में लेकर किया था तो मैंने 89 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। लास्ट ईयर पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी था, सो आई अटेम्प्टेड 92 क्वेश्चंस। इस साल बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था तो आई ओनली अटेम्प्टेड 84 या 85। तो आप अपना एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखिए इसकी तरफ कि आपको सिलेबस ये कैसे कवर करना है। तो दिस वाज द मेजर पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। बाकी आगे अगर होगा तो एक और बार इसको डिस्कस कर लेंगे थोड़ा डेप्थ में, लेकिन ये बेसिक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रीलिम्स की। एक और अब मेजर ऑब्स्टिकल है CSAT। अब लोगों को CSAT का इंपॉर्टेंस समझ में आने लगा है बिकॉज नाउ CSAT इज अ GS सब्जेक्ट इटसेल्फ। अब कट ऑफ भी आप देखिएगा सिर्फ 9 नंबर का फर्क है। योर कट ऑफ फॉर योर CSAT इज 66 और GS का 75 है। तो अब दोनों का टक्कर होने लगा है, तो दोनों को आपको एक इक्वल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया था तो मेरा 2022 खराब हो गया बिकॉज आई कुड नॉट क्लियर द CSAT पेपर। अब CSAT के 3 पार्ट्स हैं, एक आपका है इंग्लिश, दूसरा है आपका मैथ्स, तीसरा है आपका रीजनिंग। अच्छा, अब इंग्लिश का सेक्शन के लिए मैंने जैसे पहले बोला न्यूज़पेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे
so your comprehending skills will improve automatically. So try and read the newspapers a lot, वो आपको फायदा देगा, मेरे को काफी फायदा दिया. सेकंड है, आप कैट के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कैट में पूछे जा रहे हैं, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपका इंग्लिश अच्छा है और आपको उसको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है, तो कैट क्वेश्चंस वुड बी अ वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन बैंक. इसके अलावा मेरे ख्याल से और कुछ जरूरत नहीं है. ये दोनों चीज़ें अगर आपने किया तो आपका मोस्ट ऑफली हो जाएगा. मैथ्स बहुत डिफिकल्ट हो गया है. इस बार भी ये हुआ था कि मैंने फिर से सोच के गया था कि मैं मैथ्स ही करूंगा, तो फर्स्ट हाफ एन आवर में मेरे 3 या 4 ही क्वेश्चन हो पाए. फिर देन आई थॉट कि मैं अगर मैथ्स ही किया तो ये वाला साल भी गया मेरा. तो फिर देन आई स्विच टू इंग्लिश एंड फॉर्चुनेटली इंग्लिश वॉज ईजी दिस टाइम. तो ये फ्लेक्सिबल माइंडसेट के ज़्यादा है. बहुत लोग क्या करते हैं, वो दोनों में सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ते हैं या तीनों में पढ़ के जाएंगे. अगर इंजीनियर है तो मैथ्स, और अगर कोई ह्यूमैनिटी वाला है तो इंग्लिश. लेकिन दिस शुड बी नॉट योर वो स्ट्रैटेजी. आपको तीनों चीज़ें इक्वली पढ़नी है. पेपर देखिए, अगर आपको जो सेक्शन इजी लगा उसको आपको अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इट इज़ ओनली अबाउट क्लियरिंग द 66 मार्क्स का जो हर्डल है. तो तीनों आपके इक्वली अच्छे होने चाहिए एंड बी फ्लेक्सिबल इन योर अप्रोच. जितना फ्लेक्सिबल आप वहाँ पे होंगे उतना बेटर चांसेस हैं आपका क्वालिफाई करने के. मैथ्स में यार देखो, 2-3 इस बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिविजिबिलिटी रूल्स है, साइकिल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, और तीसरा आपका पीएनसी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो इस बार भी रिजल्ट के पहले तो मैं भी सीसैट की तैयारी कर रहा था दोबारा, कि अगर दोबारा देना पड़े तो क्या हो. तो मैंने तो अब शायद तब तक पॉपुलर नहीं हो, लेकिन जेई का शुरू कर लिया था पढ़ना. मुझे और कोई इसका ऑल्टरनेटिव लगा नहीं इस बार, कि लास्ट टाइम काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे पीएनसी के. तो मैंने जेई का इस बार पढ़ा. इसमें इन दोनों चीज़ों के लिए आप कोई भी देख लो, पीवाईक्यूज इसके हर साल रिपीट होता रहता है. जैसे यूपीएससी को बहुत मजा आता है 2 to the power समथिंग कुछ पूछने में, और फिर बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या है इसका, या कोई 4 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दे देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे या 10 कर देंगे, बोलेंगे रिमाइंडर क्या है. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत मजा आता है, तो वो जनरली पूछता है. डिविजिबिलिटी उसने इस बार नया पूछना शुरू कर दिया है, काफ़ी अच्छे लेवल का. तो वो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, कहीं भी जो बेसिक सोर्सेज है उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें, एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर दैट. लेकिन आप जो पहले पूछा जा रहा है उसको इग्नोर मत करिए. जैसे पहले इस साल कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, फिर आपका जो क्लॉक वाले क्वेश्चन है वो नहीं पूछे उन्होंने इस बार. तो आप वो क्वेश्चन भी पढ़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन शायद ये हो सकता है कि इस बार पहले जैसा हो जाए और ये वाले क्वेश्चन आपको ना आए. तो जो नया पैटर्न है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है. साथ ही में आपको ये क्लॉक्स, कैलेंडर्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, यू ऑल्सो हैव टू रीड दैट, एंड दैट वुड बी एडिंग टू योर स्कोर. तीसरा पार्ट है रीजनिंग का, और इसमें भी आपका कैट का पढ़ सकते हो आप. क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप हाई रखोगे तो आपका चीज़ें आसान होंगी. एक और सीसैट का मैंने इस बार सोच देखा था कि जो 2009, 2010, 2011 का जो पेपर्स हैं सीसैट के, पहले कंबाइंड आता था, आपको दोनों में मार्क्स जोड़ने हैं. 2012 के बाद इट हैड बिकम कंपल्सरी, मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग. तो उन्होंने पेपर का डिफिकल्टी ईजी कर दिया. लेकिन ये 3-4 साल का पेपर देखेंगे तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, जो इस साल जैसा पूछा जा रहा है. तो आप वो कर सकते हैं. प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस थोड़ा बहुत कर लीजिए सबका. जैसे एक नंबर यूपीएससी को बहुत अच्छा लगता है, दैट इज 91. हर साल वो किसी ना किसी फॉर्मेट में 91 पूछता है. इस साल पूछा था ऑड वन आउट क्या है. तो 91 की स्पेशलिटी की इट इज लगता प्राइम है लेकिन है नहीं, तो धोखा दे देता है ये. तो इस बार भी काफ़ी लोगों को दे दिया इसने. तो ऐसे करके आप सीसैट के पार्ट बाय पार्ट कर सकते हैं. एंड एटलीस्ट प्रैक्टिस 5 to 6 सीसैट का एफएलटीज. और सीसैट ने प्लीज़ वो हाफ लेन टेस्ट वगैरह मत दीजिएगा, कोई फायदा नहीं उसका. आप एफएलटी दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन करने हैं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं. सो आप तभी अपना एक एडुकेटेड वो कर पाओगे. सो फोकस ऑन योर हाफ लेन टेस्ट, फुल लेन टेस्ट. तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी हो गई. अब प्लीज़ अगर क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ लीजिए. सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, सर किस तरीके से मैनेज करना होता है? बहुत इशू आता है सर इस चीज़ में. अभी तो यूपीएससी डिफिकल्ट है यार, मैनेजमेंट का इशू है पूरा. किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? देखो यार, मैं ये कब अटेम्प्ट कब है आपका? सर नेक्स्ट ईयर. So see, what I would suggest is you start with your mains preparation, right? अभी से आप कर ही रहे होंगे obviously, लेकिन try to finish your mains preparation by November December. Now this includes your optional as well. आप optional को जनवरी तक एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन मेंस के जो बेसिक पार्ट्स हैं that should be finished by November. एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक ऑप्शनल का पार्ट पढ़िए और एक पार्ट आप अपना जनरल स्टडीज़ का पढ़िए. तो आपका जैसे मेरा ऑप्शनल था PSIR, तो मेरा काफ़ी ओवरलैप था सबके साथ. तो मैंने GS2 कभी पढ़ाई नहीं ज़िंदगी में आज तक. मैं सिर्फ PSIR पढ़ता था और साथ ही में 1 या 3 या ऐसे या एथिक्स पढ़ लेता था. सो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए
सुबह का एक टाइम स्लॉट बांधिए और शाम का टाइम स्लॉट बांधिए एंड फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग अभी से। आपको कितने महीने हो गए पढ़ते हुए? अभी 4-5 महीने। सो यू कैन स्टार्ट आंसर राइटिंग एज वेल। ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा अभी। और कभी सिंगल आंसर मत लिखिए। सिंगल आंसर इज ऑफ नो यूज, क्योंकि यू नेवर नो हाउ टू मैनेज टाइम। मैं क्या करता था, मैं आधे घंटे में 4 क्वेश्चन लिखता था, या 35, पहले मेरे को 36 मिनट्स लगते थे या 40 मिनट्स लगते थे, मतलब 10 मिनट पर क्वेश्चन, एंड आई ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन टू 30 मिनट्स। और असली पेपर भी मैंने जो पहले 4 क्वेश्चन लिखे, आई ट्राई टू कंप्रेस इट विद इन 30 मिनट्स। तो अभी आप 3 स्लॉट्स में मतलब डे बांटिए। एक आपका ऑप्शनल हो गया। क्या ऑप्शनल है आपका? सोशियोलॉजी। तो आप सोशियोलॉजी तो अच्छा भी कर रहा है आजकल, तो आप सोशियोलॉजी पढ़िए सुबह, या जब भी पढ़ें। एक स्लॉट आप अपना जीएस का पढ़िए, जो कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम सोशियोलॉजी के टॉपिक्स, और आप थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग वगैरह पे फोकस करिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मूव फॉर द कमिंग 5 to 6 months। So what about CSAT? आपका बैकग्राउंड क्या है? So commerce. CSAT पेपर पढ़िए आप पहले इंग्लिश का। यू कैन स्टार्ट विथ योर न्यूज़पेपर रीडिंग, और एक मेरे ख्याल से टेस्ट देके देख लीजिए आप। एंड इफ़ यू आर स्कोरिंग वेरी लो, देन आई सजेस्ट यू स्टार्ट विथ योर CSAT प्रिपरेशन एज वेल। लेकिन बहुत नहीं, मेरे इस बार काफ़ी जूनियर्स थे, वो हर संडे को 3 घंटा पढ़ते थे CSAT इनिशियली, एंड वंस यू स्टार्ट, जनवरी आ जाता है, देन यू कुड इंक्रीज इट टू अ लॉट मोर, बिकॉज CSAT में मोस्ट प्रॉब्ली आपका मैथ्स ठीक होगा, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपको इन दोनों चीज़ों में दिक्कत होगी। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो यार इंग्लिश इज कवर्ड। अब ये दोनों एस्पेक्ट्स बचे हैं, तो जो जो एस्पेक्ट आपको लगता है कमजोर है, यू स्पेंड 3 to 4 hours, बट बिफोर दैट जस्ट गिव 1 पेपर एंड सी वेर यू आर स्टैंड। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। Thank you, sir. Sir, I wanted to ask how to read a newspaper. Like how many minutes we should, give it to a newspaper, like efficient newspaper reading. सी न्यूज़पेपर रीडिंग में आई यूज टू गिव अराउंड 50 मिनट्स पर डे। अब उसमें कैसे मैं पढ़ता था, ये जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है या डेली शो बना दिया पॉलिटिक्स को भी इन्होंने, आज ये हुआ कल ये हुआ, इग्नोर दैट, मैं कैंसिल कर देता था। द ओनली 3 pages इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्रेस पार्ट इज फर्स्ट पेज जो आपका हेडिंग्स है, सेकेंड पेज जो उसका एक्सटेंशन है, द एक्सप्लेन सेक्शन एंड द एडिटोरियल पेजेस, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी कभी इसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको जनरल स्टडीज़ का जब मैंने 3 पेपर डिस्कस किया, आई बाइफर्केटेड इनटू वेरियस थीम्स। वैसे ही आप जब न्यूज़पेपर पढ़े एंड इफ़ यू रीड एन आर्टिकल एंड इफ इट इज़ फ्रॉम वन ऑफ योर थीम्स, देन यू रीड दैट। सेकेंडली, नेवर मेक नोट्स ऑफ द न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑलरेडी जो आपके करंट अफेयर कंपाइलेशन है वो आपका काम कर ही रहे हैं। सो ओनली रीड द न्यूज़पेपर फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस। और थर्डली, अगर कोई कीवर्ड कभी अच्छा लग गया तो आप उस कीवर्ड को अपने एक वर्ड डायरी में नोट कर लीजिए। नेवर नोट डाउन फैक्ट्स एंड ऑल, बिकॉज दे आर ऑफ नो यूज। जब आपने ये डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट रिड्यूस कर दिया, योर पेपर रीडिंग टाइम will automatically curve down between 45 to 50 minutes, and that is more than sufficient for reading a newspaper. Thank you, sir. Sir, how to transit from intro to body part in answer writing? In essay, In any answer or essay? see, intro का जो part है, that is basically there just to inform the examiner that you know about the topic. Either you know directly about the topic or you know the context in which the topic has been asked. तो या तो आप करंट अफेयर से कोई न्यूज़ देते हैं, रिसेंटली दिस हैज बीन द केस, और यू डिफाइन वट एवर कीवर्ड हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। नाउ फॉर द बॉडी पार्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे मैं बताता हूँ, इस साल आया था कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ AI, what are its role in clinical health diagnosis and what are its issues with regards to privacy। तो आपने इंट्रो में लिख दिया AI का डेफिनेशन, फिर आपको ट्रांजिट करना है, तो एक बड़ा बॉक्स बना लीजिए ऐसे हेडिंग के लिए, और इसमें आप लिख दीजिए कि AI यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, एंड देन यू बॉक्स इट अप। तो जो भी कीवर्ड्स क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, यू राइट इट एज इट इज। नेवर, जो हम लोग क्लास 2-3 में पढ़ते थे, कोई भी क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से शुरू करना है, तो उसे एग्जामिनर को पता चलता था यू आर ट्राइंग टू एड्रेस व्हाट हैज बीन आस्क्ड। तो हमेशा जो भी कीवर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में लिखे हैं, डायरेक्टली ट्राई टू यूज इट इन योर आंसर्स, तो उससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यू आर ट्राइंग टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब वो उसमें आपने किया नहीं किया, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट एटलीस्ट योर इंटेंशन इज दैट। फिर आप तीसरा पार्ट है इसमें, वो तीसरा पार्ट में अब कभी भी जो डायरेक्टिव कीवर्ड है, जैसे कमेंट हो गया या डिस्कस हो गया या एनालाइज हो गया, इसमें यू हैव टू प्रेजेंट बोथ द एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। या जबकि अगर आपका क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन का,
या इलेबोरेट का, तो आपको सिर्फ एक एस्पेक्ट डिस्कस करना है कि ओनली आइदर द पॉजिटिव और द नेगेटिव। तो उस बेसिस पे आपका ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा आपका वे फॉरवर्ड होता है। इन एनी टॉपिक नेवर बी पेसिमिस्टिक। प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है, ये कोई नई चीज़ आप नहीं बता रहे हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है वो नई चीज़ हो सकती है, तो वो आपको बताना है। एंड देयर यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्राई टू यूज कंटेंट इन योर कंक्लूजन्स एज वेल। तो आपका फिर एक ज़्यादा होलिस्टिक और ज़्यादा इनरिच्ड आंसर लगेगा बाकी सबके कंपैरिजन में। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कुड बी कीपिंग इन माइंड। अच्छा, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन डिफरेंट या फिर अब इसके भी दो तरीके हैं। जैसे मैं क्या करता था, अगर 10 मार्कर्स हैं तो दोनों को अलग अलग करने की जगह नहीं होती थी, तो मैं लिखता था वे फॉरवर्ड, 2 पॉइंट्स लिख दिए, कैन बी केप्ट इन माइंड फॉर इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें। सो आई ट्राई टू मर्ज इट। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको यहाँ पे एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा विच स्पेस उसका नहीं है, तो ऐसे करके आपने साथ में कर दिया। जब 15 मार्कर्स का होता है एंड देयर इज मच लार्जर स्कोप, तब आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। ये तब मैं लिखता था जब वे फॉरवर्ड हैज नॉट बीन एक्सप्लिसिटली आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर पूछा गया व्हाट मेजर्स या स्टेप्स कैन बी टेकन, देन यू कुड बी कीपिंग इट एक्सप्लिसिटली अलग से, ठीक है। अगर नहीं पूछा है तो ऐसे करके आप कॉम्बिनेशन में दोनों को लिख सकते हो। और कोई क्वेश्चन? सर, हाँ, हाउ टू रिलेट द न्यूज़पेपर एंड द एआरसी की जो समरी रिपोर्ट है वो रिलेवेंट कितनी है, कैसे इस चीज़ को जानेंगे सर? देखो यार, एआरसी की रिपोर्ट्स कुछ काफ़ी अच्छी हैं, जैसे सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गया या आरटीआई वाला हो गया, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि जो 14 की 14 है वो इंपॉर्टेंट है। सो यू नीड टू यूज योर इंटेलिजेंस इन डिसाइडिंग विच आर इंपॉर्टेंट, बट ये दो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी। इसके अलावा जो नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति एट 75, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर, न्यूज़पेपर को रिलेट कैसे कर रहे हैं, मतलब जब हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें न्यूज़पेपर को कैसे रोल वहाँ पे प्ले होगा उसका? न्यूज़पेपर को डायरेक्ट रोल नहीं प्ले होता, वो आपको एक सबकॉन्शियसली आपका एक फाउंडेशनल नॉलेज सेट करेगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आपने मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई अच्छे कीवर्ड्स देख लिया या यू कम अक्रॉस एन इंपॉर्टेंट एनेक्डोट, इट स्टिक्स टू योर माइंड एंड दैट कुड बी यूज डायरेक्टली इन द पेपर। सेकेंडली, जो लैंग्वेज है, योर लैंग्वेज वुड कंटिन्यू टू इम्प्रूव एज लॉन्ग एज यू रीडिंग कंटिन्यूसली द न्यूज़पेपर। सो वो रिफाइनमेंट आपके पेपर में या आंसर में दिखाई देगा। और सर, जो CCRT वेबसाइट्स वगैरह हैं वो सब कितने रिलेवेंट उसमें है? ये तो मैंने तो नहीं यूज़ किया। अगर लेकिन आप देखते हो और आपको लगता है कि आप ये आपको हेल्प कर रहा है तो आप कर सकते हो। मैं एक मंत्र ज़रूर बोलूँगा कि ओनली रीड दैट थिंग विच यू कैन रिवाइज। अगर आप कोई ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जिसका कोई रिविजन का स्कोप नहीं है आपकी तरफ से, देन डोंट रीड इट एट ऑल, बिकॉज विदाउट रिविजन कंटेंट इज यूजलेस, ठीक है। ओनली इफ यू कैन रिवाइज यू रीड द कंटेंट, दैट इज हाउ यू कुड navigate through this, right? Anyone else? Last question will be addressed now. किसी को कुछ पूछना है? At the back students? ठीक है, then let's wind up. That was really inspiring and motivational speech and value addition as well. Please get up and thanks Kunal as he spared his time. So, big round of applause for Kunal. Please get up. Stand up and give him a stand ovation. Thank you, Kunal, and thank you to our lovely audience. Thank you.